Okay. Abhishek, you can tell me if I missed something on there. So, looking at the scope of practice globally and particularly to UK. So, I will say, in context of obviously you have come here to see what kind of a practice does UK does as a physiotherapist, and globally what happens, and what are the scopes and other things of practicing in UK. So I then went on and went to US in 2007, cleared my APTA exam and cleared Michigan and New York states to practice there. But I came back again to UK. I never practiced in US. I also did migration for Canada and Australia, New Zealand, which I got approval from Australia, but I didn't go there. So I'm telling you this background is to understand the scope of practice of physiotherapy, and people voluntarily choose to come to UK rather than looking into the money aspect of it, because UK has a, what you call as an extended scope of practice. An extended scope of practice means as a physiotherapist, what else you can do. I have long forgotten hands-on physiotherapy, and it is least practiced in UK. So for me, all Mackenzie, Maitland's, Mulligan, and all other people are ancient books, and the therapy has moved on from there. So, in context of physiotherapy, how it works in UK is once you get qualified and you have HCPC registration, you can start a job at a band 5 level. A band 5 is a newly qualified physiotherapist, and according to the banding, you have the scope of practice. So, it starts from band 5, band 6, band 7, band 8. In band 8, you have three sections: A, B, and C. And then you have band 9A and 9B. So, moving on from band 5 as a newly qualified physiotherapy, the banding is directly related to the salaries you have. Abhishek, at least if you can open your camera, I feel like I'm talking to someone. Definitely, I can totally understand Yeah, that, sir. yeah. So, and people who wants to open their camera are more than happy. That gives kind of an interaction. So the reason of me staying here or coming back to UK is extended scope of practice. You know, to be very honest, I don't know how many of you voluntarily tried to become a physiotherapist. I'm very honest, I never voluntarily tried to become a physiotherapist after my 10 plus 2 or after inter. Most of us still, 90%, I would say, I don't have exact figures, but 90% of the people either don't get a medical seat or a dental seat, or not able to pay the fees in the private colleges, end up coming into physiotherapy as a profession. Okay, and I'm in the same boat. Probably you are now. I was back in, say, about 22 years back. But looking down the line where I'm standing now, I think I've made a better choice of not putting money. Or if you get a free seat, it's fine and good. But how many gets a free seat? It's a big kind of a limbo in India. You apply for about 10 lakh people, and you have 50,000 fee. Probably not 50,000, even 45,000 seats available. There is a huge competition. So, as a physio, you always wanted a doctor in front of the name. Probably what IAP and other organizations have done in the last 25 to 30 years. But to be very honest, I haven't seen a clinical or a physiotherapy progress in India. From point of view, you talk about Delhi Council, or you call about Indian Physiotherapy Association, or whatever. Okay, the reasoning is the world has moved on, and the moving on means, these Britishers and all of the people ruled over India for, say, about good 100 years, 200 years. I don't know the exact years, but there is a reason behind it. The reason is they think beyond, say, 100 years, 50 years, and they prepared themselves from here onwards. So it is difficult for someone to catch them, even as a physiotherapist. Okay? Now, all your qualified physiotherapists, the scope of practice in India is limited to what physios used to do in the Western world, say 15, 20 years back.
Now, Band 5 physio is a new physio who will do physiotherapy treatments, whatever you say, hands on or mobilize, manipulate, taping, all other things. When he becomes a bit 2 years experience, he moves on to become a Band 6. So a Band 6 physio is a bit more experienced Band 5 physio who can do more services than this. So a Band 5 supervises Band 6 supervises Band 5. From Band 7 onwards, there is a specialty. I rarely or hardly see a physiotherapist who is jack of all in here. When I say jack of all of you, if I'm saying something which is not matching your profile, let me know. Okay? I see that you are all journal physiotherapists. In broad context, I see patient of neurology, I see patient of stroke, I see patient of osteoarthritis, I see patient of cardiorespiratory, I see everything basically. Whichever comes my way, I'll take it. But it doesn't work like that in UK. UK has a specialization. That's what these Western worlds move faster. So we got specialization called orthopedics, and orthopedics is in-house orthopedics, pre and post-operative in the hospital. That is called orthopedics. Okay, you call musculoskeletal outpatients, like what I am doing. That's my specialization. In your world, it's a clinic. You have outpatients clinic. That's a musculoskeletal service. We'll go a bit more deeper into this, but that's musculoskeletal service. Then you have neurology divided into two parts. And neurological conditions are different, and you have specialization in there where you have this paraplegia, hemiplegia, stroke, and other things. That is completely a neurology. And that's not including the patient home visits. That's entirely in the hospital setting or a center. Then you have something called a community physiotherapy. Community physiotherapy is what we do as home visits. Okay? That's called entirely a different aspect of it, a community physiotherapy. Then you have your cardiorespiratory physiotherapy. Okay? Now we're going to talk a little bit more into musculoskeletal where I have entered it. So musculoskeletal have different branches within itself. Okay, someone can specialize in rheumatology physiotherapy, sports physiotherapist, musculoskeletal physiotherapist, MSK sonographer, injection therapist, a prescription. So within MSK, there is again so many subdivisions. Okay, now catch hold of someone called an advanced physiotherapy practitioner. We call it as a band 8A level. So you're just below the 9. So you are a band 8A as a specialist clinician within the scope of your practice. When I say scope of your practice means if someone tells me to see a neurology patient, I will straight away say on their face, I don't know anything about it. Clear? Now, you all are from Abhishek's college, are you? Not Most of you. they're all like actually my students, I would say. They all joined the course that I'm running right now, and Okay, that's fine. I don't think No, anyone is because from my college, I guess. I gave a lecturer at your as well as At, Hamdard and a few other universities. I think about 8 colleges in Delhi. So is I've done Hamdard, Delhi University, and SGP, obviously the SGP, yours, SCT, and SGP, some yes, others. yes. So probably Uh, people might have heard me. So now in MSK, something called a musculoskeletal practitioner, an advanced practitioner. An advanced practitioner is a band 8A level whose salary is very low, should not say low, but starts at £50,000 per year. Okay, so £50,000 you need to reach, and your take home after taxes will be around 3,500, depending on how much you're getting as the taxes. In band 8A, you have different scopes. Depending on what scope of practice you can do, the salary goes up like that. Okay, I typically take my example. So if I am a band 8A,
So I do rheumatology. So I do rheumatology with rheumatology consultants. I do anatomical guided injections of all peripheral joints. I do ultrasound scanning, diagnostic, means reporting on MSK sonography, and I do ultrasound guided injections, also prescribe. So these are the five specialization you're looking at if you become an advanced physiotherapy practitioner. If you have those scope of practice, then your salary you can negotiate starting at 50,000, depending on your experience, up to 70,000. Okay? And probably if you push too hard, you can earn more than what the GP is earning. But it takes more time for you than for a GP. GP obviously has a more scope of practice. So I will sometimes talk in Hindi. I think all are from North India, तो Hindi में कोई issue नहीं होगी. So what we are looking at in a practical, clinical scenario, that you have to be competent enough to match something. Rather than being competent, we have run behind having a doctor in front of our names in India, but dentists don't put doctors here in front of their name. They are not bothered about it. They're more than happy to be called as a dentist than a doctor. Okay? The physios are more happy in here to be called as physios or advanced practitioners rather than being doctors. So your scope of practice is too big. Suppose you have a plan to move out from India to somewhere. Okay? So we're looking at practicing in Middle East. That, believe me, when I say Middle East, you're looking at Saudi, Oman, Qatar, Dubai, Emirates, all Emirates, or anywhere. These all group of countries practice what you do in India. There isn't a huge difference in there because we all went there, and probably some Egyptians and some other people came in, but practice wise, there is no difference in that. When you're looking at a Western world, when I say Western world, you're looking for Australia, New Zealand, Europe, UK, America, and Canada. These are 6 countries you're looking for. Now, the practice differs in every country. If you're a physiotherapist, apart from UK, the 5 things I told you, you cannot do anywhere in the world. Okay? Now, you cannot inject, you're not authorized to inject anywhere in the world. But I understand someone did some courses in India to do peripheral joint injection, and there were a couple of courses in Delhi as well. Right? If someone knows it, just let me know. But believe me, being incompetent in any practice and learning something to do it, you are putting yourself at a very high risk, and the patient is very high risk. The risk is you can kill someone. And I don't think that you should be prepared enough to take that risk. Okay? I am basically injecting from last 12 years in UK, and I have registered my first anaphylactic reaction just gone last Friday. Okay? Does Abhishek, including you, does anyone knows what's an anaphylaxis or anaphylactic reaction is? I think Abhishek will allow you guys to open Yes, the camera. I just want everyone to just turn on your camera. It will be great if Just uh, yeah. If you can just unmute, raise your hand and unmute and tell me if you know what is an anaphylaxis. someone else. So Yeah, okay. it's a severe allergic reaction towards in the body which takes place. That's very good. Do you know how much time it gives you to react to it? I guess around 24 hours a daytime is there with the body, or 6 to 7 hours. I had read in some of the pathology Okay. books. I'm not sure about it. Good. Anyone else wants to act with this? Some minutes. Sorry? Just some minutes. Okay, good. Anyone else? In few hours. Okay. Guess it. You should keep on talking. Okay. Thank you, Saurabh. It gives you hardly seconds to minutes. If you don't react in that,
someone might, Om Soha, that he will pass away. An anaphylactic reaction could be a slow developing reaction to a very rapidly developing reaction, which can constrict your airway passage and you lose someone if you don't put adrenaline or hydrocortisone immediately into the body. Okay, so मैं 12 साल से इंजेक्ट कर रहा था. I never had anaphylaxis. There is a difference of having anaphylaxis and a syncope. A syncope is sudden reduced blood pressure or less blood going to the brain where the patient faints, lose consciousness. You can handle that. It's not a big deal. But anaphylaxis, you got to be ready there with an EpiPen, we call it. I think I'm injecting in my clinic today. So that's my injecting pad. Okay. This is all my drugs. And this will always be with us whenever we inject. Okay. This has to be injected immediately if you have a rapidly deteriorating anaphylactic attack. Watch the patient continuously. If it's not responding, another pen goes into his thigh. If you miss it, you will kill him. If you kill someone, medical negligence in Western country, you're done. So the problem practicing in India is that we don't create data. We are trying to become a therapist than a physiotherapist. Can someone tell me what's the difference between a therapist and a physiotherapist? Anyone, join me, open it. It's good that I'm talking to probably you're 25 years younger to me and qualified just now, probably in the last 5 years. And Abhishek heard my lecture and he's been a very good student of mine and you're students of Abhishek. So you're open for anything. Talk to me, okay? Now, clinical difference, tell me any difference you understand when I'm saying you all are becoming therapists and you all are physical therapists, physiotherapists. So tell me, what do you think the difference I'm talking about being a therapist and being a physiotherapist? Can anyone guess and tell? Yeah. Hello. Yeah, Namrata. So can you hear me? Yeah. So I think therapists are the people who used to give a therapy like they don't evaluate the patient. As a physiotherapist, we used to evaluate patient like separately, specifically, like what is the problem, what is, we go in a very specific direction, like, and a therapy is like a therapy. You're giving therapy to everybody in the same way. But being a physio, we used to understand the specific problem of that specific individual patient. Exactly. That's what I good answer, Namrata. Excellent. Now, Baba Ramdev is a therapist. Okay, he is a yoga therapist. Yeah, and you have anyone on the corner of Delhi doing massage. He's a massage therapist. Someone doing acupuncture is an acupuncture therapist. Dry needling therapist. Cupping therapist. But if you guys become therapists, then there is a problem there. Because Baba Ramdev might have a good fan following, good results even, okay, but he doesn't correlate with a medical practice or a research-based practice. Okay, massage people do massage, कोई भी करता है ना, everyone does massage. अब ये बताओ पूरे group में, does anyone, can you think, right, having massage and not feeling good? Everyone will feel good. तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट मसाज करके फीलिंग गुड में क्या डिफरेंस है? I want to massage. That's what in India still you're struggling. You need to explain your audience and to the people, no, I don't do massage. But still people, physiotherapist means massage. So that is the concept. The problem is not the audience. The problem is we as a physios. Right? Because we are doing that what therapists are doing, not doing as a physiotherapist.
Okay? Same thing. Everyone's running behind acupuncture. It is a Chinese kind of a origin. They are experts in that, but from ages together, they haven't come up and tell us this is what it does. No. If it helps, fair enough. You're not talking about helping. Same thing, acupuncture. Same thing, cupping. If you're dragging yourself after studying 5 years, full anatomy, as good as the medical doctors, physiology, pharmacology, biomechanics, orthopedics, surgery, psychology, all the subjects, agar end of the day you have to go and do a massage, why you're wasting 5 years? And believe me, some of the massage parlors earn more than the physios does. Some of the acupuncturists in India probably earn more than the physios do. They don't need a qualification or anything. Pressure therapist. Fair enough. If you're feeling better, it's fine. But getting better has so many aspects of it. You prescribe those things where you said this anatomy, this physiology, this pathology is giving this problem. Right? So when you treat a patient, you have to go reverse. This pathology need to be addressed. This is the physiology behind it, and this is anatomy. But believe me, when you do a massage, do you think of any anatomy or do you need anatomy? Probably don't need even origin and insertion. And believe me, that year when I studied from Rajiv Gandhi for the second year batch, there was hardly any college in North India. And it was pretty tough at that time to pass that first year. And I'm happy that they have done that to me. So, end of this is, tell me all of you, when you're looking at practicing, why you are going back into that arena of becoming therapist than physiotherapist? Your profession will never be accepted. You will not stand in front of any doctor, I can bet you. Okay? But coming back again to the scope of practice, honestly tell me, 5 साल ऐसे ही निकल गए? Did you pass just easily like that? I don't think so. ऐसे ही निकल गए. Divyanshi has joined. Open the camera probably. So you tell me who I can speak to the people who are on the cameras. So Subhashri and Sana, ऐसे ही pass हो गए. It was easy. Believe me, I used to cry in my first year because my anatomy lecturers were all MDs coming from orthopedics, UK ENT surgeon. Came back, Dr. Kumar is one of the popular anatomy lecturers in Mangalore. Sikilas. That has helped me. But I've tried to become a physiotherapist. Hence, I haven't gone someone's. Sorry, sir, for that. By mistake, he has done. Pranay, please, can you turn off the this mic? Pranay? Okay, thank you. Yeah. Okay, thank you. So the thing is, I went to US in 2007, but I always had this. I wanted to become a doctor, right? Not a physio. ये बताओ, how many people accept you as a doctor? They say, massage doctor. आपने डॉक्टर लगाया नाम के सामने, उन्होंने बोला ठीक है, हम भी लगाते हैं. They put you as a massage doctor. फिर हम वही आ गए. End of the day. So you need to come out of that. If you need to come out of that, you need to be doctors in real sense, looking into anatomy, physiology, and other things. I think Abhishek was giving a lecture I saw on rheumatology. At the end of the day, you have a patient who has rheumatoid arthritis who zindagi bhar सीधा नहीं हो सकता. And that is your patient for the rest of his life. The same way is a patient for a rheumatologist for the rest of his life. You're not losing him. But if you don't become medical doctors, you're going to struggle. So how the UK is progressing is, every time an organization fights for the right in UK, this is the beauty of the Western world, which probably we say we follow the same democracy, but you all know how democracy runs in our part of the world.
when I say India. Okay? हम उसके बाहर ही नहीं आए. We never came out from independence till now about caste, religion, and all other things. We're still there. But when you come to UK or Western countries, you will get shocked, right? All my Indian friends have all Pakistani friends. All Pakistanis have Indian friends. But when it is UK, cricket match we all separate. That's fair, okay? And we taunt them badly. But on the ground here, when you look in the Western country, there is rarely a fight. I think this happened just a few days back because people are migrating a lot in here. So when you're thinking into medical background, so what there was an organization like IEP in UK. When I came to this country, there was no HCPC registration. This is an organization. This organization fought for the right of the physios, asking them this title should be protected in the country. This is how clinicians will think. Protected means if you guys come to UK, आप आपके नाम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट यूके में नहीं लगा सकते. You can't put as a physiotherapist because it's a protected title, right? Same way, IEP मेरे हिसाब से 30 साल से हमें ये कह रही बस हो गया, आ गया हमारा प्रोटेक्शन, वो नहीं आएगा. मेरे को तो दूर तक नहीं लग रहा कि वो आने वाला है. 30 साल से तो आ रहा है. मैंने ग्रेजुएशन जब स्टार्ट किया था ना, जब से आ रहा है. बस अब हो ही गया. अब पार्लियामेंट ने कर दिया, अब वो हो गया. Forget about it. Okay, the things which are not in our hand, we should forget about it. So they came into existence called HCPC, Health Professional Council of UK, is a government registered organization which take care of the title called physiotherapist. You can't put physiotherapist against your name until you have a license to practice. Now, उसके बाद इन्होंने बोला, tell me, who are the best people to know the joints and the muscles in medical field? Is a GP, when I say GP, a doctor, and orthopedics, right? Orthopedics will be more good into joints and stuff in his surgery. But overall, looking at your joints, looking at the muscles, who is more into this day and night looking into these things are the physios. So the UK people thought, what is a big deal in doing the injections of peripheral joints? What is a big deal? So the medical people say, no, wait here. There is a big deal here, right? There is anaphylaxis, there is syncope, there is infection, there is a reaction to the drugs, then everything. Then they said, okay, we all studied pharmacology. Okay, means you have an idea of medication. It's not about prescribing. Remember, you're not prescribing. जो हम फिजियोस ने जो फार्माकोलॉजी पढ़ी है ना, that is not even 2% of the pharmacology. और हम समझते हैं we know it. Believe me, don't open your mouth in any front of any doctors in relation to pharmacology or medication. There is their own expertise. So they said fair. So we have people who are highly expertise and using all these things on regular basis. Okay? And then you have something called a problem with certain medications can do. So they found out a way to do this. So they said, okay, we are going to create a course called injection therapy course. That course runs for only 2 to 3 days. They'll teach you about anatomical position, injections, and all other things with pharmacology. They will then create an exam for you, a practical and the theory exam. You have to pass the theory exam, then only you are allowed to do the practical. Practically means you have to do injection under a person who does injections, at least 10 supervised injections, then come and give an exam. In exam, they'll ask you everything. Anaphylaxis, what is anaphylaxis? How you will differentiate from an anaphylaxis to a syncope? Or if the patient is on X drug, will you inject him? If not, why you don't inject him? So they're medically training. Then they give you the certificate. Yes, you're competent enough to do it. This agreed, and then the UK was the first country to allow physios to do peripheral joints injections.
Clear? Now, उसके बाद ये हुआ कि now an SHO, do you know what is an SHO? Registrar who works under a consultant. Right? If you go to any orthopedic, you will have a registrar. If you go to rheumatology, you will have a registrar. So they said, what is the registrar does? So it does same exactly like what consultant does, but he takes opinion from the consultant because consultant is an expert. Okay, so in the same way, said, okay, then SHO does almost like a consultant. Then why is wasting his time with rheumatology patients half an hour? Can the physios do this job? Say yes. So when I'm talking about rheumatology, I'm not talking about treatment. You're talking about screening. Screening meaning you need to know what is rheumatoid arthritis, okay? What are the clinical flags for rheumatoid arthritis and how you're going to deal with it. Clear? So ये rheumatology service is not rheumatology of treating, but we call it as a screening. So probably Abhishek has done it. I'm not pointing at him. Can anyone, after listening to Abhishek or Abhishek himself, Abhishek, have you done my rheumatology class? So not till now. Not on the rheumatology. So you can also participate. Sure. So now, if a patient come to you, a rheumatology condition is an autoimmune disease where the body is producing antibodies which is attacking your own cells, your cartilage and joints. Right? It's an autoimmune disease. Physiotherapist kya ukhad lega? Sorry for my language. Right? What will you do? What would the hell will you do? A person developing rheumatoid arthritis as a physio. For me, nothing. जब तक कि उसकी deformity ना हो जाए, then we are treating the deformities, range of movement, or keeping the hands in the stuff. But that's an advanced stage of rheumatoid arthritis. What are you going to do? Why did they teach you? Rheumatology. The rheumatology meaning in your private clinic, in your hospital, in your thing, you should be competent enough to pick rheumatoid arthritis or inflammatory arthritis at its earliest stage. Then the DMARDs can be effective. Hopefully, you know what DMARDs are, right? Disease modifying anti-rheumatic drugs. पढ़े होंगे ना? इसीलिए आपको पढ़ा गया था what is DMARDs. यूज करने के लिए नहीं पढ़ाया था. आपको बोला गया था this drug is called disease modifying anti-rheumatic drug which can be used in rheumatoid arthritis. If you come across a patient who is an inflammatory driven pain or rheumatoid arthritis, refer them to a rheumatologist. ये आपका काम है. लेकिन जो आपका काम है ना, वहीं हम गायब हैं. क्यों? क्योंकि we are not physiotherapists. What we are becoming? Therapist. So this comes into UK. Now, I am working for, say, since I came back from India somewhere in January से अभी तक end of October tomorrow, I work 7 days to be honest, right? I've become a bit of crazy person after coming to UK. So I work 7 days, I teach my students, I make their CVs, I grab time from somewhere or the other, and I also spend time with my family. So now I am working with the topmost rheumatology consultant in whole UK. If you Google around, you will see something called Imperial Hospital. Imperial group of hospitals consist of St. Mary's Hospital, one of the top hospital in London, Hammersmith Hospital, okay, or Charing Cross Hospital. These are the topmost hospital in London and nationwide. अब उनके 4 consultant के साथ मैं काम करूं directly. So patient is referred as a rheumatology condition from any person, GPs, physios, and everyone. I sit with him and a rheumatology consultant in his room. We tell the patient, bring him here, and then take his nose. So he's 35 years old, having a pain, and all rheumatological screening. What bloods you have done? What are the tests? What are positive? Everything you take it, and then go into the rheumatology consultant.
We got a 34 years female with pain, lower back pain, for last say about 7 months, also getting the pain in the sacroiliac joint area, disturbing sleep, morning stiffness lasting for more than 45 minutes. She had some blood tests, then inflammatory markers are up. We have organized an MRI stare. This is showing an inflammatory pathology in here. So what it's going to do? So then the consultant comes in, he ticks few boxes. What boxes he takes? Tell the patient, I think you have ankylosing spondylitis. You're in an early stage. There are two choices of this. If it is aggravated badly, then you can start on something called DMARDs, disease modifying anti-rheumatic drugs. Or you can live your life without that by doing physiotherapy, maintaining the joints and mobility of your spine. It's a progressive disease, it won't go. Patient makes a decision whether he wants to go on DMARDs or not. In this part of the world, we call it as शेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. आप अपने से कुछ नहीं कर सकते इस कंट्री. आपके पेशेंट को बोलना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसके चॉइसेस क्या है और उसको क्या करना है, आपको नहीं करना है. सो वी कॉल इट एज अ शेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. आप पेशेंट को इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि उसकी जिंदगी. So I've seen people who has declined demands. अगर आप qualified है ना सारे के सारे, कभी गलती से बैठ के ना डिमांड्स के साइड इफेक्ट्स पढ़ो. जिस दिन आपने डिमांड्स के साइड इफेक्ट्स पढ़े ना, आप खानदान में किसी को डिमांड्स नहीं खिलाओगे. चॉइस है वहां पर. या आपको जॉइंट को बर्बाद करना है प्रोग्रेसिवली, या जॉइंट को प्रोटेक्ट रखते हुए आपको गंजा हो जाना है, राइट? या आपको अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं उसके डिमांड्स के. आंख वीक हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल सिस्टम प्रॉब्लम. सो दिस इज वेयर द फिजियोथेरेपिस्ट आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई है, राइट? आई थिंक अभिषेक, एवरीवन मस्ट हैव गॉन इनटू द लैब्स. ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैव लैब्स, राइट? Yes, sir. Yeah, and everyone must have done, all the CRP, ESR, full blood count, liver function, renal profile, HLA-B27. मैं 25 count कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? So what was the reason for you guys doing all these tests when you don't practice at all? तो UK ने बोला कि they are studying, so a rheumatology ESP like me, rheumatology ESP like me will know if ESR is raised, what could be the problem? CRP is raised, what could be the problem? HLA-B27 positive, what could be the problem? Liver function test, ये सबका आपको रेशन पता होना चाहिए. और आपको बिल्कुल पढ़ाया है इंडिया. They have taught you. It's not that आपको नहीं पढ़ाया. लेकिन इंडिया में पढ़ के यहाँ काम करने में जो मजा है ना, you love it. If you are a clinician, अगर आपको थेरेपिस्ट बनना है, don't come to UK. आप मसाज करिए, एक्यूपंक्चर करिए, कपिंग करिए, जो आपको करना है वो करिए. थेरेपिस्ट, not a physiotherapist. You don't need to be a physiotherapist to do it. So then the people thought, we will make rheumatology ESPs, extended scope practitioners or advanced physiotherapy practitioners. So there are certain people who always are with the rheumatologist. वो कोई हाथ नहीं लगाते हैं पेशेंट. Diagnosing, liaising with the consultant, drug monitoring. साल में अगर कोई ड्रग्स को रिपीट करके उनको चेक करना है तो फिजियो doesn't need it. So they become so expert in rheumatology, that is another scope. Then now they think, okay, again the same question, muscles, who are the best people to look at? Physios. Then can't they do scanning? They can very well scan because they know anatomy. So they created a course called Diagnostic Ultrasound Course for medical doctors and physiotherapists, MSK sonography. So MSK sonography is chill out course, 4 days only, nothing. 4 days physics पढ़ाएंगे आपको, everything they'll teach you and tell you how to scan things. Then you come back after 3 months, you give an exam, you pass.
UK is more practical place. 4 दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे, एनाटॉमी पढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत स्कैनिंग बताएंगे, then they will tell you to go. ये जो go वाला टाइम है, this is where the problem in UK comes up. ये go वाले में आपसे इतना होमवर्क कराएंगे ना कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैं ये पढ़ूं या अपना काम, because they want you to come for a practical exam where you should identify all the tendons, all the joints, not pathology, at least identify. तो एग्जाम आप जाएंगे तो बोलेगा आपको मेजर शोल्डर आ जाएगा, एंकल आ जाएगा माइनर, राइट? एंकल में बोलेगा लैटरल कंपार्टमेंट या एंटीरियर कंपार्टमेंट, शोल्डर में द होल शोल्डर. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आता है तो वी कैन से ना start at the biceps tendon, then we go up, biceps is fine, come down to medial aspect, you look at subscapularis is fine, there is no impingement, AC joint, then you look at your infraspinatus, teres minor, glenohumeral joint, the labral triangle, right? And then turn it, look into supraspinatus, stairs and everything, protocol. When you do it, you learn it, you pass the exam. पास हो गए तो आप स्कैन नहीं कर सकते अभी सिर्फ आप प्रैक्टिकल पास में. आपको 250 स्कैन करने हैं किसी के सुपरविजन में. Then that is the practical implementation of all these things. स्कैन करते 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 आप एक्सपर्ट हो जाएंगे. Then when you submit your report to the university, I have done my 250 scan under Mr. X, who is a radiologist or a qualified MSK sonographer. He has signed me off for 250. Then you write a reflective essay. The university check everything, then give you the certificate that you're an MSK sonographer. उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती है यहाँ पे. Because अभी आपने लाइसेंस खरीदा है ना, तो आपको फरारी नहीं देता कोई. देता है क्या बताओ? Does anyone give you a Ferrari? Okay, go and drive Ferrari. I'll give you. No one will give you a Ferrari because you will be missing a tendon tear. You can miss some sinister pathologies as well. क्योंकि lumps and bumps भी देखते हैं हम लोग, right? तो फिर आपको क्या होता है, छोटी जॉब लेके ऊपर आते आते फिर मेरे को 4 साल के बाद मैं डायग्नोस्टिक लिस्ट करता हूँ. डायग्नोस्टिक लिस्ट मीन्स मैं अभी I'm doing a rheumatology clinic in Hillingdon Hospital in London. So I don't know whether I'm turning it correctly. So this is my handy machine here. That's not our ultrasound in India. This is a diagnostic ultrasound. Right? It's a compact diagnostic ultrasound. Compact मतलब ये बैग में आता है, ये और एक बैग पड़ा दिखा है. Can you see my bag there? वो जो बैग दिखा है, इसका कॉस्टिंग यहाँ पे जो है अराउंड 40,000 to 50,000 pounds है, क्योंकि बैग में आता है, बैग में जाता है. जब मैं डायग्नोस्टिक, आज रोमेटोलॉजी कर रहा हूँ, मैं जब डायग्नोस्टिक लिस्टिंग को जाता हूँ ना डायग्नोस्टिक सेंटर पे, वहाँ जो अल्ट्रासाउंड मशीन में यूज करता हूँ वो हाई एंड है, मतलब वो लेम्बोर्गिनी फरारीज है. देयर कॉस्ट इज अराउंड 100,000 to 125, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की मशीन है. वो मशीन पे आपको जो टेंडन नजर आता है, मैंने पढ़ा ये था, this is the joint, this is what a tendon looks like, this is how an inflammation looks like, how the tendon tear looks like, how an inflammation looks like. तो यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है ना, उसके साथ आपके पैसे भी हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस भी है. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यूके में क्या है पता है आपको? सबसे अच्छी बात यूके में ये है, मैंने देखी है, यहाँ पे मुंह पे बोल देता है आपके कोई भी, मतलब आई डोंट नो, ऐसे. हमारे पास कोई मुंह पे नहीं बोल सकता आई डोंट नो, क्योंकि हमारा पेशेंट का भी प्रॉब्लम है. यहाँ पे मैं जीपी के पास जाता हूँ ना, तो जीपीओ को, मेरा जो रजिस्टर्ड जीपी है, ही नोज दैट आई वर्क फॉर रूमेटोलॉजी, और मेरे को खुद को गाउट है क्रॉनिक. तो ही जस्ट स्माइल्स एट मी, से सफदर you should tell me how to manage gout. Why you are asking me? ऐसे बोला, I don't know much. You tell me how much we should give you. भाई साहब, so they are very fair and frank. मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं. इंजेक्शन करना हो ना, मेरे पास जीपी आता है, कंसल्टेंट्स कहते हैं कि he does more injections than me, he is more expert than me, go to him. क्यों? क्योंकि वो सर्जरी कर रहे हैं ना.
तो वो एक्सपर्ट्स इन सर्जरी है. आपको अंदाजा है, मैं जब अपनी इंजेक्शन क्लिनिक चलाता हूँ, प्योरली कॉल एन इंजेक्शन क्लिनिक, एंड आई जस्ट फिनिश्ड इन ऑक्सफोर्ड लास्ट मंथ, तो कोई गेस कर सकता है मैं एक दिन में कितने इंजेक्ट करता हूँ? एनीवन कैन गेस? एक नहीं यार, जॉइंट इंजेक्ट करना ऐसे नहीं चले जाती मसल में. You have to be precise. You need to know the technique, how to go to reach your biceps, और क्योंकि आप दिख नहीं रहा, you're talking about landmark injections. तो मैं 25 से 30 इंजेक्शन करता हूँ, और मेरे से ज्यादा कोई और नहीं करता, कंसल्टेंट भी नहीं करता. तो सोचो कि मेरी कॉम्पिटेंसी, यूके में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग. तो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मतलब आपको 50 इंजेक्शन करने एक साल भर में कम से कम कॉम्पिटेंट रहने के लिए. और मैं 50 कितने दिन में करता हूँ पता है आपको? 2 दिन में करता हूँ साल भर की खुराक, जो कहते हैं ना मिनिमम इतनी खुराक चाहिए आपको कंटिन्यू रखने के लिए, मैं 2 दिन में करता हूँ. उसमें आपको हर चीज, जैसे आज मैंने जो है ना, अभी आप देखो मैंने नी इंजेक्ट किया है, तो इतना बड़ा फॉर्म हम लोग भरना पड़ता है. मैं नी इंजेक्ट, कोई भी इंजेक्ट कर लूँ, अगर थोड़ा सा खरीद लाऊं मैं, ये सारे साइड इफेक्ट्स, ये एडवाइस पेशेंट को, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये पूरी राम कहानी समझाने के बाद मेरे को यहाँ साइन करना पड़ता है कि आई टोल्ड एवरीवन अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड ही इज हैप्पी टू प्रोसीड विद इट. फिर पेशेंट यहाँ साइन करता है. अगर उसको लैंग्वेज नहीं आती है तो इंटरप्रेटर भी आता है साथ में, वो भी साइन करता है. This, then only I am allowed to inject. तो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस हो गई. फिर उन्होंने बोला कि भाई when you know diagnostic, when you do injections, then why don't you do ultrasound guided injections? ना yes, why can't we do it? तो मैंने वो भी कोर्स कर लिया. तो फिर मैंने अपना डिप्लोमा इन एमएस के सोनोग्राफी कंप्लीट की. ठीक है, अब ये देखिए आप कि मैं पूरे गाइडेड इंजेक्शन करता हूँ. यू कैन सी द नीडल गोइंग इनटू द जॉइंट. जब मजा आता है आपको, एनाटॉमी पढ़ी थी ना, उसको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे देखना और आपकी नीडल वहां जाते हुए देखना जहाँ पे टारगेट है, उसको मजा आएगा जब आप बोलिए मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट बनना है. आपकी पंचर की नीडल जाके क्या कर रही है ना थेरेपिस्ट को पता है ना नीडल को पता है ना, तो दिख रही है बस. पेशेंट को अच्छा महसूस होता है, फील्स बेटर. फील बेटर के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, जरूरी नहीं है आपकी नीडल काम कर रही है ना. जैसे तिलक लगाते नहीं है ना, तिलक लगाते ना हिंदूज, उसका कॉन्सेप्ट पता है? मेजॉरिटी हिंदूज हैं इसके अंदर, किसी एक को पता है तिलक लगाने का क्या है कॉन्सेप्ट? यूर अ हिंदू, यू शुड नो. सर आई थिंक हमारी जनरेशन इतनी ज़्यादा वी आर नॉट इनटू नहीं नहीं, पता होना चाहिए. देखो कॉन्सेप्ट ये है कि तिलक लगाने का, इट सीम्स फ्रॉम द, नॉट फ्रॉम एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, बट द रेज कम टुगेदर and enter your body through that area which some affecting to your body. Okay, that's fine. Lekin can you prove? We can't prove it. So there are things which are religious point of view, psychological point of view, fair enough. But आपने जो है ना ये नहीं पढ़ा ना, आप बता दो कहीं पे भी कोई नर्व ऐसी आपको लगी जो यहाँ के एंड होती है और पूरी बॉडी को कोरिलेट करती है? नहीं, नहीं है ना. किसी को यहाँ पे पढ़ाया है थंब के पास से स्टमक को कोई रख जाती है? लेकिन बेवकूफ बनाने वाले ना हमें इंतहा का बना देते हैं कि दैट नर्व सप्लाइज दैट स्टमक एरिया. अरे मेरे भाई, स्टमक को सेंसरी सप्लाई नहीं है, तो यहाँ छूने से पेट का दर्द कैसे कम होगा? ये आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन के आपको करना चाहिए सिस्टम में, तो जब मजा आए. यहाँ पे इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, झगड़े बहुत किए हैं, कॉम्पिटेंसी बताई है. तो अब जाके आप यूके में क्या कर सकते हैं? यू कैन इंजेक्ट ऑल पेरिफेरल जॉइंट, कॉल
landmark injections, scope of practice. You can do diagnostic ultrasound scanning. You can write a report as equal to a radiologist. अब तो भागने लगे रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि हम इतने कर लेते हैं कि हमारा हाथ साफ हो जाता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस एंड ऑल प्रोसीजर, जिसको आप बाबाटाज कहते होंगे, या फेनिस्ट्रेशन, टेंडन फेनिस्ट्रेशन, बाबाटाज, और बस स्क्रैपिंग भी करते हैं। You can prescribe within the scope of you working, meaning अगर आप रोमेटोलॉजी में कर रहे हैं, आपके कंसल्टेंट ने रोमेटोलॉजी की कॉम्पिटेंसी साइन अप कर दी और अपने फार्माकोलॉजी कर ली है, प्रिस्क्रिप्शन कोर्स, तो यू कैन प्रिस्क्राइब अ ड्रग, स्कोप है उसके अंदर। अब ये लोग, अब ये बताओ आप, when are you guys going to catch these people? Will Indian system will allow you to catch these people? I don't think that scope in the next 25-30 years. तो प्रॉब्लम ये है कि जब तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पैसे भरते हो या करते हो, उनसे सवाल करो। यू गॉट द राइट टू डू इट। ना तो पॉलिटिशियन से हम सवाल कर सकते हैं, ना तो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी पॉलिटिकल हो गए, हमारी गेम बजा देते। मेरी तो बहुत बजाते हैं इंडिया में खुला, क्योंकि आई स्पीक लाइक दिस। दे डोंट लाइक मी, सम पीपल टोल्ड मी ना, सम ऑर्गेनाइजेशन डोंट लाइक मी, डोंट लाइक मी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। Man, I want to put an aspect. The Abhishek, the whole talk of today was scope of practice. तो मैंने आपको 5 स्कोप तो मेरी बता दी है, ठीक है? अब बताइए कि anyone can tell me, do you think in 25 years you're going to catch these people? Injections, चलो कैच करो। अल्ट्रासाउंड, पहले तो मशीन के पास नहीं जा सकते आप। I don't know whether you know or not. Give me 1 second, okay? Hello? सलाम फजल भाई, क्लास चला रहा हूँ, आपको मैं कॉल करता हूँ। कल दिन भर फारिग हूँ। ओके ओके, अच्छा। कोई गेस कर सकता है किसका फोन था? अंदाजा लगा लो। He's my good friend. अभिषेक को पता नहीं होगा तुम। He's good friend of mine. 12 साल head of the physiotherapist for cricket team of Pakistan. MSc qualified from Australia, leading a biggest hospital in UAE. और वो बेचारा यहाँ आना चाह रहा है उम्र होने के बाद, इसीलिए क्योंकि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, सर भी फोड़ लो तो आप स्कोप ऑफ प्रैक्टिस नहीं बढ़ा सकते। और वो बेचारा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कम से कम 70% अपनी सैलरी छोड़ के आ रहे हैं। मेरा कि कमा लिया जितना कमाना था, जो करना था, मतलब हाई फाई होटलों में रह गया है, सारी इंडियन टीम को जानता है, सब सेलिब्रिटीज को जानता है। 15 साल 12 साल मजाक नहीं है ना। ये वन ऑफ द टॉप टीम्स है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, राइट? अब तो हम नहीं कह सकते पाकिस्तान को टॉप टीम है जिम्बाब्वे के हारने के बाद। तो एनीवे, सो रिमेंबर, coming back to the scope of practice, आप लोगों को क्या लगता है? Anyone who has not opened the camera, that's fine. Tell me कि clinically कैसे आगे बढ़ोगे? How you are going to grow clinically? और मैं इतना देख रहा हूँ ना, 25 साल में उल्टा ढकल रहे हैं। हमारे बैचेस फुल होते हैं एक्यूपंक्चर के इंडिया में, और सबसे खतरनाक मेरे को गुस्सा जब आया था ना, एंटी दिस STM, यार तुम लोग ना मसाज बन के रह जाओगे। इंस्ट्रूमेंटल मसाज, वो लाखों बना रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जिसने वो जो ना आइडिया लिया है कि भाई इसको मेटल को ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। आप कर क्या रहे हैं? व्हाट यू गाइस आर डूइंग विद STM? हाँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि STM प्रोडक्टिव नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन तुम्हारा काम है STM करना। वो मसाज वाले का काम है, या फिजियोथेरेपी असिस्टेंट का काम है, या 2 साल का डिप्लोमा करने का काम है, जो आपके क्लिनिक में 10-15 हजार रुपए में काम कर रहा होगा। उसको मसाज सीखे, उसको टाइम बर्बाद करना है अपना 1 घंटा मसाज करके, आपको टाइम बर्बाद ही नहीं करना। और गलत हो, यू आर रॉन्ग इफ यू थिंकिंग अबाउट मनी। बिलीव मी, जो आपका पॉपुलेशन है, हमारा पॉपुलेशन इंडिया में है ना, आपको कभी पेशेंट की कमी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो ना
इंडिया चल कैसे रहा पता है? 100 देख लो, 25 खुद ही ठीक हो जाएंगे, 25 नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, 50 को चला लो, उसमें मुश्किल हो जाती है। मैं ऐसे इंडियंस को जानता हूँ, पता नहीं आप जानते हो जानते नहीं होंगे, जिनकी सैलरी 1,20,00,000 है। जानते हो किसी? 1,20,00,000 इंडिया में कमा रहा है, मैं भी मैच नहीं कर सकता। तो स्कोप प्रैक्टिस है ना। कोई भी अभिषेक, ये सोचो कि जब तक तुम लोग 5 साल पढ़े हो या ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स में जाते हो या सेमिनार्स में जाते हो, डांस खाने पीने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेयर होते हैं कोर्सेस। आई रियली लाइक, हाउ मेनी पीपल नो हरप्रीत सिंह इन दिल्ली एम्स? Yes, sir. तो हरप्रीत मेरा टॉपर था मेरे क्लास से, और मैं सबसे बदमाश क्लास का। I got suspended. I got police cases for ragging and girls, and I was not like this. I was a different man when I started my journey. आप लोगों के लिए बोल दूं मैं, I was model and I've done provoke level modeling. I have been a model with Katrina Kaif when I started. We didn't do So I was different. that side of yours, sir. So the thing is कि आपको सोचना है where you want to go in and what you want to do as a clinician. Does anyone in this group know Dr. Amod? Dr. Amod Manocha, Saket Hospital, pain consultant in Delhi. So I've heard the names, but I don't know them personally. Amod is a very good friend of mine. He's an MD anesthetist and a pain consultant who has been a consultant in UK for nearly 2 decades, and he went back to India. बहुत बेचारा देशभक्त इंसान है, और कम्युनिटी एंड हेल्प मैं नहीं कर सकता यार, बहुत मुश्किल है वो। Anyways, so imagine Amod and me are very good friends. He's an MD anesthetist, pain consultant, Saket Hospital. Can anyone guess how we become friends? उसका तो फील्ड अलग हो गई ना। He's an MBBS, MD anesthetist and a pain consultant. और मैं रहा एक physiotherapist. Did he came as a patient to you? No. So me and Amod are colleagues. Colleagues in what sense? Me and Amod studied MSK sonography together. तो ऐसे भी दिन होते हैं जब मैं भी फोन करता हूँ या अमोद मेरे को फोन करता है, यार ये स्कैन पे ऐसे लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। और क्या चाहिए भाई, एक मेडिसिन करके एमडी बन के, पेन कंसल्टेंट है, एमडी एनेस्थेसिस्ट है, आपके साथ एक कोर्स कर रहा है, to look at the standard and scope of practice there. He paid for me, called me to Saket Hospital. कौन सा साकेत था वो पता नहीं मेरे को, याद नहीं आ रहा। मैंने वहां पे भी लेक्चर दिया, लेकिन बच्चे बोर हो जाते हैं। कुछ नहीं होता सरीना पे, कोई पैसे नहीं देता, कोई रेस्पेक्ट नहीं देता। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट रेस्पेक्टिंग? तो अभिषेक है या आप कोई भी क्या मतलब अनम्यूट करके बोलो कि क्या लग रही है इसको इन 25 इयर्स, ये 5 में आएंगे आप लोग? कभी रुमेटोलॉजिस्ट साथ बिठाएगा, लीगल जॉइंट इंजेक्शंस करने का परमिशन मिलेगा, अल्ट्रासाउंड को तो टच नहीं करने देते हैं वहां पे। आप अल्ट्रासाउंड के साथ पकड़े गए तो आपको जेल हो जाएगी, पता है ना। सिर्फ रजिस्टर्ड लोग अल्ट्रासाउंड रख सकते हैं, और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रॉब्लम है इंडिया। प्रिस्क्राइब लीगली कोई नहीं करता, वैसे भी फार्मासिस्ट को कोई लीगल प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, वो सब दे सकता है इंडिया में, है ना। हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है किसी भी चीज का, तो हम डाटा की बात ही नहीं कर सकते। डाटा की बात इंडिया में कौन कर सकता है बताऊं मैं आप? उसका नाम क्या है, वो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, डाटा एनालिस्ट, पॉलिटिकल डाटा एनालिस्ट, who won the BJP and Mamta's campaign in West Bengal. He's a very big, Yes, sir. क्या नाम है उनका? सर नाम याद नहीं है, बट आई जस्ट नो कि आप किसकी बात कर रहे हो। हाँ, those are the people. Yeah. अब तुम बताओ, पूरी जो क्लास में मेरे ख्याल से how many participants we have here? सर 54 स्टूडेंट्स। 55 में से कौन अपना डाटा बनाता है बताओ? और मैं कोई अलग नहीं हूँ, I'm among you
Probably I'm a bit old because I qualified, let's say, about 22 years back. तुम लोग 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, डाटा कौन बना के रखता है बताओ? नहीं बनाते, कभी नहीं बनाओगे, मुश्किल हो जाएगी बहुत। आप मेरे से पूछो 2013 से लेके 22 तक मैं हर डेट का आपको पेशेंट निकाल के दे सकता हूँ, हर डेट का। आप मेरे को अगर पूछोगे आज कि what I have done here, I have every patient notes on my record. यहाँ कहते हैं कि you can't keep the patient notes if you can identify the patient by it means. Sorry, just so if I have to go back and reflect on my practice, where will I reflect? बताओ। और पता है इंडिया में हम सब साधु हैं, बाबा हैं, पूरे के पूरे फिजियो साधु और बाबा हैं। Tell me why I tell you like that. बताओ मेरे को, कोई बता सकता है? Sir, there is lack of critical thinking, I guess. मतलब नहीं, उस वजह से नहीं कह रहा हूँ। Okay. हम अंतर्यामी हैं। अच्छा। रीजनिंग क्या है बताऊं मैं आपको, कि आप लोग कैसे याद रखते हो यार एक पेशेंट का डाटा जब तुम्हारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, है? तो अगर कोई प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहा होगा तो वो खुद डाटा नहीं रखता है, राइट? तो आपको पता ही नहीं था वो बेचारे का दर्द कितना बुरा था, उसका एग्रीवेशन किस किस चीजों से था, उसका प्रोग्रेस क्या हुआ है, क्या उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, क्या हो रहा था उसके साथ जब वो मेरे पास आया था, और आज उसको 1 महीना हो गया है। जब तुम्हारे पास इनिशियल असेसमेंट नहीं है तो तुम प्रोग्रेस को किस स्केल पे वो करोगे, क्योंकि तुमने नोट्स नहीं बनाए। तो बाबा अंतर्यामी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम लोग सब कैसे याद रखते हो यार, 10-10, 20-20 पेशेंट दिन के, समझ नहीं आता। हाउ कैन यू रिमेम्बर? अब मेरे को पता चला ये रिमेम्बर का चक्कर नहीं है, वो कुछ भी हो जाए उसको ट्रीटमेंट वही देना है, तो उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता ना। उसको आईएलटी लगा देनी है, ट्रैक्शन लगा देना है, उसको मसाज कर देना है या एक्यूपंक्चर कर देना है, ये कर देना है, तो आपको डाटा की जरूरत ही नहीं। तो आप प्रोग्रेस कैसे देखेंगे? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन प्रोबेबली, आई डोंट नो, आई शुडंट से दिस, बट डज एनीवन नो और चेक फॉर कार्डियक वायना इन लो बैक पेशेंट्स? क्या आप लोग करते हैं? ऑनेस्टली बताओ, कोई एक भी करता हो तो ऑनेस्टली बताओ। एवरी पेशेंट मैं ये सवाल करता ही करता हूं, इंडिया में कोई नहीं करता। इतने आज रजिस्ट्रेशंस लेके बैठे हैं ना इंडिया में जिनको जॉब चाहिए, और कब आते हैं पता है मेरे पास? सब ठुकरा दिया सर, 5 इंटरव्यू दे दिए, 25 जगह सीवी भेजा दी सर, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो भाई साहब होगा कैसे बताओ? आप हमारे लिए रिस्क है, रिस्क असेसमेंट होता है ना, रिस्क असेसमेंट, आप हमारे लिए बहुत बड़े रिस्क हैं, हम आपको कैसे कर रहे हैं जॉब पे? अब बताओ आप रिस्क में क्यों क्या? कैन एनीवन गेस कि मेरा इंश्योरेंस कितना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? लीव अबाउट सोनोग्राफी, कितना मेरा इंश्योरेंस है, कितना कवर करते हैं मेरी गलती को यूके में? अगर आपके पास एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन है यूके में तो आपको सीएसपी की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अगर आप सीएसपी की मेंबरशिप ले रहे हैं तो वो आपको देते हैं इंडिमिनिटी इंश्योरेंस, किसी ने आपको सू किया तो वो संभाल लेंगे। तो कोई भी वाइडली गेस करो कितना मेरा इंश्योरेंस होगा एक फिजियोथेरेपिस्ट का यूके, इंडिमिनिटी इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, कोई भी करो यार, 55 लोग हो। और मैं उस इंश्योरेंस को बरकरार रखने के लिए 36 पाउंड मंथ देता हूँ, उसके साथ दूसरी भी चीजें मिलती है मेरे को, लेकिन 36 पाउंड मैं देता हूँ, 3600 देता हूँ महीने के। Sir, in INR, I would say. आईएनआर मत बोलो यार, मैं वो जीरोस को उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सर वो हमारे लिए तो आपको आइडिया लग गया होगा। अभी हम देखो 1 लाख यूके पाउंड्स, 1 लाख यूके पाउंड्स के 1 करोड़ इंडियन रुपीस होते हैं इंटू 100, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं,
ठीक है, 10 लाख का मतलब 10 करोड़, 2 मिलियन के 20 करोड़, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्यों मैं तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूं? मेरा कवर 10 मिलियन पाउंड्स का है, तो अब उसको मल्टीप्लाई कर लो कितने करोड़ का मेरा इंश्योरेंस है। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरे को इंश्योरेंस क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मैं सोनोग्राफी करता हूं ना, तो मेरे 2 दिन काम करने का मेरा 1 लाख इंश्योरेंस है। मतलब 1 लाख रुपए मैंने दिए सिर्फ 2 दिन काम करने के लिए, इंश्योरेंस भरा है, तो उसका इंश्योरेंस 20 मिलियन का है मेरा अलग। तो ऑल टुगेदर अगर मेरी गलती होगी तो मेरे को 30 मिलियन बैकअप है मेरे पीछे, 30 मिलियन पाउंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट। उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, फिर करोड़ में डिवाइड करो, तुम्हें फिगर पता चल जाए। तो क्यों है? कुछ रीजन होगा ना, पागल तो नहीं। रीजन ये है कि आप लोग डाटा नहीं बनाते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, आपकी गलती नहीं पकड़ी जाती, आपको कोई सुन नहीं करता, वो मर जाता है बेचारा, लेकिन आपको सुन नहीं कर पाता। आप नेग्लिजेंस में चले जाते हैं, उसको 20 साल के बाद, 15 साल के बाद पता चलता है उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जब वो बर्बाद होगी उसी पुलिस पर, तो आपके पास तो आएगा नहीं, क्योंकि आप लायबल ही नहीं। मेडिको लीगल केसेस इंडिया में नहीं होने देते हैं हमारे पास। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि आप सवाल करेंगे ना डॉक्टर से, सवाल करेंगे तो वो फंस जाएगा, तो कैसे होगा फिर? तो आप लोग सब बताओ कि काढ़ा कोयना पढ़ा होगा, 100% पढ़ाया है आप, आई कैन बेट ऑन दैट। लेकिन 99% मैं जिन फिजियोस के क्रॉस आया हूं ना, पहली बार, मतलब नॉट आफ्टर टॉकिंग टू देम, पहली बार उसमें से 99 लोगों ने नहीं बताया समझ काढ़ा कोयना, उनको पता भी नहीं था, भूल गए थे सब सारे। तो समझो कि काढ़ा कोयना में की प्रेवलेंस क्या है। कोई बोलो, आफरीन बताओ, पता है तुम्हें काढ़ा कोयना की प्रेवलेंस क्या है, कितनों को हो सकता है, कोई परसेंटेज का आइडिया है? सुभाश्री, अरुषि, खुशबू है, सलोनी है, किसी को पता है आइडिया? जब यूके का पॉपुलेशन इतना छोटा है, इनके पास डाटा है, तुम्हारे पास तो इतने काढ़ा कोयना ऐसे बर्बाद हो गए होंगे ना कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि ये हमने हमारे हाथ से हुआ होगा। गूगल कर लो, जब गूगल करोगे ना तो याद भी रहेगा। मैं हमेशा करता हूँ गूगल, Sir, बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, someone has written याद रहे। 1 to 2% approx. हाँ हाँ, Someone has written in the chat box. ये बहुत बड़ा रेशियो है। अगर 1 और 2% हम देख रहे हैं तो इंडिया में आधे काढ़ा कोयना पड़े होंगे, तुम लोग बर्बाद कर चुके होगे इंडिया को, अगर वो रेशियो रहेगा। उसका रेशियो है 0, शून्य के बाद तो हम डॉट लगाते हैं ना, 0.00040 के बाद 3, मतलब 1 लाख लोगों में 1 से 3 लोगों को हो सकता है सर, इतना कम है। लेकिन अगर यूके में किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी नोट्स में काढ़ा कोयना चेक नहीं किया ना, ऑडिट में पकड़ा गया ना, तो उसको कोर्स कराना पड़ता है हम लोग, जो फिर से पढ़ कर आओ, 5 घंटे का काढ़ा कोयना मिलता है, फिर वो पढ़ के आना पड़ता है उसको, फिर उसको अपने नोट्स में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। क्यों पता है आपको? एवरीवन इज इन 30s अराउंड, राइट? यहाँ पे जितने होंगे वो 30s होंगे ना, 20-30 के बीच में होंगे। सो अपने आप को रख के सोच लो कि फॉर एग्जाम्पल, टच वुड, नो वन शुड हैव इट, अगर आपके साथ काढ़ा कोयना हो गया, क्या उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को आप माफ करेंगे क्या? अब काढ़ा कोयने में क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी भर ब्लैडर पहनेंगे क्योंकि आपका ब्लैडर फंक्शन करना बंद कर देगा। आप टॉयलेट का बैग लगा के रहेंगे जिंदगी भर क्योंकि आपका स्पिरिटर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, आप कुर्सी पे बैठे या तवे पे बैठे गरम, आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आपका सेडल एनेस्थीसिया का सेंसेशन उड़ गया, राइट? सबसे खतरनाक बात है, सेक्सुअली इंपोर्टेंट हो जाएंगे आप जिंदगी भर के लिए। ये चीजें हो गई अगर, तो किसी को आप माफ करेंगे क्या, बताइए?
नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे रिस्क होती है। और ये नहीं है कि नहीं होता है, होता है 100% होता है। अगर हमारे 100 पेशेंट A&E जाते हैं जिनको कार्डियक वेना हम सस्पेक्ट करते हैं और 100 में से एक का भी कार्डियक वेना नहीं है ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शाबाशी मिलती है, यस यू हैव डन अ गुड जॉब। अगर हमने नहीं भेजा तो सवाल होता है क्यों नहीं भेजा, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास इतने पेशेंट आ रहे हो और तुमने सवाल किया और किसी ने तुम्हें ये नहीं बोला कि मेरा ब्लैडर नहीं, मेरा बॉबल गया हुआ है। कोविड में टेलीफोन कंसल्टेशन पे मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था उसमें से एक एपीपी ने कार्डियक वेना मिस किया, एडवांस प्रैक्टिशनर 10 इयर्स इनटू एमएस की प्रैक्टिस। वो कहती है उसने बोला, पेशेंट कहती है नहीं बोला, बरल पेशेंट का उड़ गया सिस्टम, 36 इयर्स फीमेल, सिस्टम्स गॉन, ठीक है, तो उसका केस चल रहा है। थेरेपिस्ट कहती है कि आई टोल्ड हर, पेशेंट कहती है कि तुम अगर बोलती मेरे को तो मैं तो चली जाती है नहीं को सीधा, तुमने नहीं बोला। द कन्वर्सेशन इज बिटवीन द पेशेंट एंड द फिजियो। अब सबूत नहीं है किसी के पास भी, तो पेशेंट से तो सबूत पूछेंगे नहीं क्योंकि पेशेंट तो मार खाया हुआ है ना, उसका लॉस हुआ है। थेरेपिस्ट से पूछेंगे आप बताइए क्या आपने बोला है, आप बोले मैं कुरान की कसम खाता हूँ, मैं भगवत गीता की कसम खाता हूँ, मैं बाइबल पे कसम खाता हूँ, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, प्रूफ 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 लाइक प्रूफ, प्रूफ क्या होगा, आपके नोट्स होंगे और उस बेचारे ने डॉक्यूमेंट नहीं किए, उसने वो एक वर्ड कार्डा एक्वाइना सेफ्टी नेटिंग डन बोल के नहीं लिखा उसने। हम प्रेशर में काम करते हैं काफी, छूट गया, अब लगे रहो जिंदगी भर। स्ट्रक हो सकते हैं रजिस्टर से, या आप सू हो जाए, या आपकी कंपनी सू हो जाए, या ये हो जाए, एनीथिंग विल हैपन। अब बैक टू द पवेलियन, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस हमने आपको बता दी, आप में से कोई भी नहीं बता रहा है कि प्रोग्रेस का क्या है। अभिषेक तुम बताओ, तुम लीड करते हो उन लोगों को, तुम्हें क्या लगता है कि हम इंडिया में कैसे प्रोग्रेस होंगे? मैं 25 साल में तो नहीं हुआ कुछ। सर आई थिंक मतलब ये स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है एक्चुअली इसी के लिए मैं खुद भी आना चाह रहा हूँ यूके, सो एज टू जस्ट एक्सप्लोर द थिंग कि एक्चुअली में जो हम पढ़ते हैं, जो जितना हम प्रैक्टिकली करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है इंडिया में। तो लाइक आई डोंट थिंक कि वही जैसे आप कह रहे थे ऑलमोस्ट नेक्स्ट 25-30 ईयर्स में भी ऐसा कुछ हम पहुंचने अच्छा, वाले हैं आसपास। अब आप मेरे से पूछो कि सर Yes. आप यहाँ चले गए, ठीक है, मेरे को सर बोलना पसंद नहीं है, आप मेरे बोलो सफदर आप यहाँ पहुंच गए, आप कहाँ जाना चाहते हैं आने वाले 2-3 साल? कोई भी पूछो मेरे से, मैं फिर जवाब दूंगा ना, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया, आप मेरे से सवाल करो। आई थिंक कोई भी पूछ सकते हैं। So where would you like to go into next 2-3 years? You're already एग्जैक्टली, यस। ये कौन था, ये सोनाली थी ना? Saloni sir, yes sir. हाँ सलोनी, सॉरी सलोनी। नया कोर्स आ गया है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो जाता अगर कोविड नहीं आता तो। हम करेंगे सर्जरी अब आने वाले 2-3 साल, हम करेंगे छोटी सर्जरी, हम करेंगे कार्पल टनल रिलीज, हम करेंगे ट्रिगर फिंगर रिलीज, हम करेंगे नी आर्थ्रोस्कोपीज एंड वॉशआउट्स, हम हो सकता है करें मिनिसेक्टमीज, हम करेंगे छोटे टेंडन्स, तो हम अब उधर जाएंगे, अभी शुरुआत है, तो छोटी शुरुआत होगी। आई थिंक जेड प्लास्टी, आई थिंक सर सीटीवी के लिए अभी हो रहा है ना, आई थिंक जितना थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया था। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि यूके में 5 ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो स्पाइनल इंजेक्शंस करते हैं, गाइडेड स्पाइनल इंजेक्शंस करते हैं, रेडियोग्राफी के अंदर एक्सरे गाइडेड स्पाइनल इंजेक्शंस, एपिड्यूरल्स, फैसिट जॉइंट, नर्व ब्लॉक्स। इनको मैंने क्या देखा इनकी प्रैक्टिस में, ये एक चीज को पकड़ के ना इसकी मदर सिस्टर कर देते हैं, दे गो इनटू डीप इनटू डीप इनटू डीप इनटू डीप। जो रोमेटोलॉजी फिजियो होता है ना, जीपीयू से नहीं लगड़ लेता यहाँ पे, तो नॉर्मल डॉक्टर भी नहीं लगड़ लेता। कौन लगड़ता है पता है? जो नया नया इंडिया से उठ के नहीं आता डॉक्टर, वो अपने आप को कुछ और समझ लेता है यहाँ पे आके। तुम थोड़ा सा उसको बोलते हैं बेटे आप बैठिए, हम 10 साल से इसके अंदर काम कर रहे हैं, आप हमारे
करीब नहीं आ सकते, नहीं आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे A&E में गया था खुद के नी के लिए, 3 डॉक्टर्स A&E के मिलके मेरी नी के अंदर से एस्पिरेट नहीं कर सके, मैं घर आके खुद अपना एस्पिरेशन कर लिया। तो एक बात याद रखो, the scope of practice is not limited to anyone. Knowledge is not limited to anyone. The license process comes into the picture to check that you are competent enough. अब अगर 50 में से कोई भी 55 में से मेरे को फिंगर टिप्स के ऊपर एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की क्लिनिकल फीचर्स बता दे, या फॉर एग्जांपल पॉलीमैल्जिया रोमैटिका बता दी, इट विल बी अ स्टार फॉर माय एंड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी से, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी पता है ना, ओपन इट एंड टेल इट टू मी टुडे, तो मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन बता सकता हूँ कि होता क्या है आपके लिए। They have a bamboo spine. Okay, good. Anyone else? In ankylosing spondylitis, basically the fusion of the vertebral vertebras, starting Okay. from SI joint to move forward, thoracic spine, lumbar spine. जयश्री, are you Gujarati? No sir. ये ऐसे ही पूछा है मैंने, आपका सर नहीं देख के मेरे को पता नहीं। Anyway, so anyone else? The patient. Sir, AS also affect the eyes. Okay. Pain of eyes, heel, low back. So it's a progressive disease. The patient morning stiffness, which lasts for about like more than 30 minutes. Who's this? Someone told me morning stiffness. Who is that? Prajakta. Priyajakta. Okay. Come on, others can tell a lot more. 55. It's a progressive disease. It's a progressive disease. Yeah. Namrata, thank you. आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। HLA 27 की वजह से होता है, एंड इसका पेन बाद में शैटिक पेन की तरह रिफ्लेक्ट करता है। Okay. Ashra, thank you. Mostly occur in females population. Good. Brilliant. और बताओ, sorry. So recall करो अभिषेक, यार तुम लोगों को बहुत लेट है, if you want to go, go. मेरे को, मैं if I start lecturing or teaching, I enjoy it, so मेरे लिए तो सिर्फ 5 बजा है. So we have more females than males. Okay. And sir, age group is also young females, like from 25 to 30 or 35 years old. Okay. Young females, bamboo spine, early morning stiffness for 35 minutes plus. Anything else, Charwin? Females more than males, young females, bamboo spine, early morning stiffness. Have I forgot? HLA-B 27. Okay. Breathing difficulty. Breathing difficulty. Significant loss of motion. Sorry? Go on, Significant go on. stiffness and lumbar range of motion reduced. Okay. Anyone else, or should we just stop it? And in this AS, it is a decreased in chest expansion also. Okay. So spasm is present in whole body or muscles, we can say. Okay. Mostly spine muscle. Neck pain is common. Sorry? Neck pain. Okay, neck pain. Okay. Sir, vision problem, or we can say unexplained weight loss. Okay. So vision problem भी हो. Okay, vision problem. Thank you. Shubham, thank you.
Okay. Sir, some of females have digestive issues also. Okay. See, now there is a female who came to your clinic. She is 37 years old, having come to you for lower back pain, और उसका lower back pain है about 9 months, feeling tired and affecting her sleep. ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया है क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लेते नहीं है इंडिया में, ठीक है? मैंने टिपिकल ट्रीटमेंट्स देखे इंडिया में, ट्रैक्शन, IFTs, shockwave therapies, SWDs, not shockwave, SWD. Okay, this is where the things go wrong. Now, clinical manifestation for any ankylosing spondylitis, if you are suspecting, तो हम जब फाइनल ईयर में आए थे ना BPT के, तो आपको निचोड़ बताया गया था clinically. From your anatomy to your physiology to your lab testing to your pharmacology, ये सबका निचोड़ होता है फाइनल ईयर और या फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस. तो जब क्लिनिकल फीचर्स हम देखेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, तो मैं रोमेटोलॉजी करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू गाइस टू टेल मी बिकॉज प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग है. फीमेल्स मोर देन मेल्स, फर्स्ट पॉइंट. एज ग्रुप सीन इन मिडिल एज, मीनिंग 20 to 40 years old, young. So females 20 to 40 years old, pain more than 3 months old, sacroiliac joint or buttock pain shifting from one side to other side, disturbed night sleep, early morning stiffness, more than 45 minutes to an hour, other joint manifestation, history of psoriasis, pain aggravated by resting, activity making it better, family history of ankylosing spondylitis. ये 12 टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, अगर आपने लिखे होंगे तो, ठीक है? अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है और आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पता है, तो आपका ब्रेन ट्रिगर करेगा. शी इज 37 इयर्स ओल्ड. तो पहले जैसे आपने देख लिया कि शी इज 37 इयर्स ओल्ड, तो आपके दिमाग में आएगा यंग पॉपुलेशन में क्या हो सकता है. 37 इतनी बूढ़ी नहीं है, तो मैं वेयर एंड टेयर नहीं सोचूं. इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्क पैथोलॉजी, राइट? उसको साइड में कर दो, हम लोग डेमोक्रेसी पे ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जो होगा हम उसको दे देंगे, राइट? तो हर कोई IBDP नहीं है बैक का, डिस्क प्रॉब्लम नहीं, और डिस्क में वैसे प्रॉब्लम होता भी नहीं है. तो पहली चीज आपको पता चल जाएगा, यू आर लुकिंग एट अ फीमेल, पहला बॉक्स टिक्स हो गया. एज ग्रुप क्या है इसकी? ये 20 to 40 की है, तो थोड़ा बहुत 5-10 साल का जो है ना डिफरेंस हो सकता है. बस लेट ऑनसेट भी होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस 60-70 में, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो. आपको आइडियल पेशेंट नहीं है, तो आपने दूसरा बॉक्स टिक्स कर लिया. वो कह रही है कि उसको 6 महीने हो गए दर्द से, तो ये मैकेनिकली या पोस्चरल जो इंडिया में होता है, पोस्चरल नहीं. 3 months old हो गया. You come in. ठीक है? Then you ask, is it disturbing your sleep? Yes. कौन से बैक का पेशेंट होगा जो नींद नहीं टूटेगी उसकी? सबकी टूटेगी ना. तो इसमें एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, अर्ली मॉर्निंग, लेटर हाफ ऑफ द नाइट, मतलब जो कॉन्स्टेंटली मूव नहीं हो रहा है ना, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से उसकी नींद टूटती है. तो लेटर हाफ ऑफ द नाइट. Morning stiffness, real stiffness should last more than half an hour to 45 minutes, more than half an hour to 45 minutes. Activity करने से pain better होता है. Not feel during the move, when she is doing the job and keep moving. When she sits and relax, or end of the day when she comes from work, it flares up, right? फैमिली में बैक के प्रॉब्लम्स है, जरूरी नहीं है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, फैमिली में बैक के प्रॉब्लम्स है. घुटना भी कभी सूज जाता है, एंकल कभी सूज जाता है, या कोई और जॉइंट का मैनिफेस्टेशन है,
कोई सिस्टमिक इश्यूज हैं, कोमोबिडिटीज हैं, राइट? तो जब आप ये टिक बॉक्सेस करेंगे ना, तो आपका फिजियोथेरेपिस्ट अगर जिंदा है तो वो जागेगा। आप उसको बोलेंगे बेस्ड ऑन द क्लिनिकल असेसमेंट, आप यंग है, फीमेल है, लेट नाइट डिस्टर्ब स्लीप हो रही है आपकी, आपका मॉर्निंग स्टिफनेस है, एक्टिविटीज बढ़ रहा है, पूरे आप टिक बॉक्सेस में से कुछ टिक बॉक्सेस आपने पॉजिटिव किए, तो आप उन पेशेंट्स को बोलेंगे आई थिंक यू नीड टू हैव ब्लड टेस्ट। इसीलिए आपको लैब में लेके गए थे, पैथोलॉजी पढ़ाई थी, है ना? तो आपको पता उससे होगा कि मेरे को क्या ब्लड्स करना है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ESR, CRP, राइट? फिर HLA-B27, फुल ब्लड काउंट, रीनल प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल। अब आपको जाके उसमें देखना पड़ेगा कि why am I doing these blood test? अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका क्या मतलब है, नेगेटिव होता है तो इसका क्या मतलब है। इसीलिए आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई। फिर MRI जब कराना होता है तो MRI की एक सीक्वेंस होती है जिसको कहते हैं स्टेयर सीक्वेंस, STIR, फैट सप्रेस सीक्वेंस। और थोरैसिक स्पाइन में थोड़ा सा हम लिखते हैं रेडियोलॉजिस्ट को, एक्सपैंडेड व्यू चाहिए। अभी उन लोगों ने बोला ना ब्रीदिंग का इश्यू होता है। क्यों होता है ब्रीदिंग का इश्यू? कोस्ट्रोकॉन्ड्रल ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से, पीछे के जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कार्टिलेज। तो आप कहते हैं कि MRI वाले को प्लीज कंसिडर अ स्टेयर MRI स्कैन विद एन एक्सटेंडेड व्यू ऑफ द thoracic area to clear any inflammatory pathology, MRI including sacroiliac joints to look for sacroiliitis। अभी कैसे पता चलेगा आपको? आपने की है पढ़ाई, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। अब बताओ, आपका बेचारा पेशेंट 35 में पॉजिटिव आ गया, उसको है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अभी किसी ने बोला था ना ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, बैम्बू स्पाइन है, ठीक है? तो फिर ये पेशेंट को आप फिजियोथेरेपी करेंगे? यस, नो मत बोलिए। लेकिन इस पेशेंट को आप पहले क्या करेंगे? आप इस पेशेंट को रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेजें। आप जब लेटर लिखेंगे ना रूमेटोलॉजिस्ट को, दिस यंग 37 years old female attended my physiotherapy clinic complaining of lower back pain for no reason for the last 6 to 9 months. She's also complaining of pain radiating into the sacroiliac joint / buttock area. Alternatively, pain doesn't radiate anything below her buttocks, but she also get some knee or ankle pain. Her symptoms are disturbing her sleep, particularly later half of the night. She's stiff in the morning for 35 to 45 minutes. Activity is easing her symptoms and inactivity is aggravating her pain. She's not specific about ankylosing family history, but does say that family has problems of spine. She works in an office. She's quite active patient, does exercises, right? And her past medical history includes underactive thyroid, diabetic. She say there is no unexplained weight loss, fever, night sweats, or history of cancer. There is no cardiac venous syndrome, symptoms of bowel and bladder dysfunction, sudden anesthesia, erectile dysfunction, or sexual dysfunction. She recently had some infection, but she has recovered from it. On objective assessment, she has a normal gait. I cannot see any pathology of the spine on observation. She has good range of movement, however, has some limitation in extension where she's complaining of pain. Neurologically, she is intact. Sensation, reflexes, muscle power is fine. Hip range of movement is fine, but sacroiliac joint compression test is provoking her symptoms. There is some localized tenderness in the spine. Niche. Given young patient with more than 3 months history of lower back pain into sacroiliac spine pain, disturbed night sleep, early morning stiffness for 45 minutes, activity releasing the pain and inactivity aggravating the pain, indicating of spondyloarthropathy / ankylosing spondylitis. I have requested the patient for blood test.
which has revealed raised inflammatory markers. However, HLA-B27 is negative. Stare MRI sequences revealed there is sacroiliitis. ये अगर लेटर रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा ना, उसका नेक्स्ट पेशेंट तुम्हारा होगा, ये गारंटी लिख लो, तुम्हारे हॉस्पिटल में, तुम्हारी क्लिनिक में, या तुम दिल्ली के कोई भी कोने पे काम कर रहे हो। अगर कोई अच्छा क्लिनिशियन है ना, वो तुम्हारा फोन उठा के बोलेगा, राइट, फोन उठा के बोलेगा, अभिषेक, वेयर डू यू वर्क, वेयर इज योर क्लिनिक, राइट, कैन यू कम एंड सी मी। क्योंकि उसको दिल्ली में लेटर नहीं मिला होगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ये लैंग्वेज चाहिए उनको जिनको आप कह रहे हैं कि वी विल बी अ फिजियोथेरेपिस्ट। अब आप रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपका पेशेंट को खुश, रोमेटोलॉजिस्ट को, उसको पेशेंट मिला, आप भी खुश। क्यों? अब रोमेटोलॉजिस्ट उसको बोलेगा ये मेडिकेशन, रोमेटोलॉजिस्ट को अच्छा पता है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप स्टिफ होते जाते हैं, बैम्बू स्पाइन। तो आपको तो जिंदगी भर रहना है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, लेकिन आप जिंदगी भर तो बेचारे को फिजियोथेरेपी नहीं दे सकते ना, बैंकरप्ट हो जाएगा। तो आप उसको बुलाते हैं, एजुकेट करते हैं सबके बारे में, मेडिकेशन कितने इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो तुम्हें फिर रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तुम्हें हर 3 महीने में ये ब्लड टेस्ट करवाने हैं, रोमेटोलॉजिस्ट खुद करवाए। आप बोलेंगे, आपके पास आएगा, आप सारे स्पाइन के मेजरमेंट लेंगे, उसके फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उसका, चेस्ट एक्सपेंशन क्या है उसका, लंबार मोबिलिटी क्या है उसकी, सैक्रोलियक जॉइंट इरिटेबिलिटी क्या है उसकी एक्टिविटी क्या, उस हिसाब से आपने उसके एक्सरसाइज प्रोग्राम बना के देना। शुरू में उसको आप बुलाएंगे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, फिर आप उसको बोलेंगे हर 3 महीने भैया मेरे पास आना है, 500 रुपए देने। वो आपको देगा 500 रुपए, आएगा आपके पास हर 3 महीने जिंदगी भर। तो ऐसे पेशेंट आप क्रिएट करेंगे ना कि वो लाइफ लॉन्ग आपके पेशेंट है, वो आते रहेंगे आपके पास। आपका रिकॉर्ड होगा तो आपको चेक करना है कि भाई एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप उसको बोलना है लास्ट टाइम आपकी स्पाइनल मोबिलिटी इतनी थी, कम हो गई भैया, इसका मतलब है आप नहीं कर रहे। अगर आप नहीं करोगे तो ये और टाइट होती जाएगी, झुकने नहीं आएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा, चेस्ट एक्सपैंड नहीं हो रहा है, जॉइंट की लिमिटेड हो गई है मोबिलिटी, जॉइंट अब फूलने लगी है, हो सकता है तुम्हें जॉइंट इंजेक्शंस चाहिए। क्लिनिकली, इकोनॉमिकली, लॉन्ग टर्म, ये सब कुछ है। एक सेकंड, मेरा डोर ना बंद करके चला जाए, 1 मिनट में खुला रखिए आप। So if you want, so मैं अभिषेक जो है ना, मेरे से जॉइन भी है, तो I run a company in India called प्रॉस्पर फिजियो, ठीक है। प्रॉस्पर फिजियो में मैं यूके की लाइसेंसिंग कराता हूँ, स्टूडेंट्स को यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज को गाइड करता हूँ, उनकी यूनिवर्सिटी की हेल्प करता हूँ एडमिशंस वगैरह में। मेरा मेन काम है कि मेरे को क्लिनिशियंस बनाने हैं। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके इंडिया वापस जाइए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर इंडिया में सोचो कल को इंजेक्शन अलाउड हो गए तो आप नंबर 1 रहेंगे जो शुरू कर सकते हैं। सोनोग्राफी, आपको ड्रग्स पता है तो आप जीपी को खुद लिख सकते हैं या डॉक्टर को लिख सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, किसकी गाइडलाइंस पकड़नी है, नाइस की पकड़नी है, यूके में पड़ेगा ना सर। रिसर्च तो ये कहती है कि ये पेशेंट को आप जो है ना पूरी दुकान खोले हुए हो, उसको आप गाबापेंटिन भी दे रहे हो, प्रीगैबलिन भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, वो भी दे रहे हो, उसका दर्द कम नहीं होगा, तो क्यों उसको नशा करा रहे हैं आप? नशा होता है पता है आपको? ये जो न्यूरोपैथिक मेडिकेशंस होते हैं ना, वो बेसिकली नशा होता है। नशा का मतलब ओपियोइड्स, ये नशा होती है। जब आप किसी को नशे की आदत डाल देते हैं ना, वो बाहर नहीं निकल पाता उससे। उसका ना तो दर्द ठीक होता है, ना तो आप उसको नशे के बाहर कर सकते। अगर आप किसी को लिखो सर एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ पेन मैनेजमेंट,
If the patient is not improving on the drug, it's recommended that patient should be slowly wean off these drugs completely. So I teach everything. So I teach like spine, hip and लेकिन मैं दो तरीके से काम करता हूँ. पहली चीज ना, मैं थोड़ा सा वो हूँ क्रिटिकल. मैं ऐसे ऐसी कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हूँ कि मेरा दिल करता है धज्जियां उड़ा दूं जब मेरे को पता चलता है ना कि वो लोग 1-1 लाख इतने लाख चार्ज कर रहे हैं और दे नहीं रहे हैं वापस कुछ भी, ले रहे हैं बस. उनका एक ही वन वे. अब 55 यहाँ है ना, 55 में से मेरे ख्याल से 50 तो आईपी के मेंबर्स होंगे ना, सारे ही होंगे, मैं भी हूँ. मैंने No, तो sir, I'm not. हाँ, नहीं मतलब कोई ना कोई दिल्ली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, आईपी के होंगे, नहीं तो. और एक है ना राजन सर का भी दिल्ली में शुरू हुआ है ना, क्या नाम है, राजन ही नाम है ना उनका. सर देखो कोई Global करके कुछ ऐसा. हाँ, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन ने तो आपसे पैसे ले लिए मेंबरशिप के, हो गया उनका. आपको क्या मिला है? आपको मिला है कॉन्फ्रेंस में गाने सुनना, डांस करना, पार्टी करना. तो यार मैं फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस में जाके क्यों करूं वहां पे? यू कैन हैव अ फिजियोथेरेपी मीट, इसमें सारे खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे से सोशलाइज करेंगे, दैट्स फाइन. लेकिन एक एजुकेशन में जाके, एजुकेशन जैसे ही मैं मुंह खोलता हूँ ना, चेयर पे से थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के चले जाते हैं. रीजनिंग ये है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर यही होगा, ये आपसे यही करेंगे. और हमसे भी करें 20 साल 25 साल पहले, और आपसे भी करेंगे. हमने 22 साल पहले 3,000 फीस दी थी, तो आज मेरे ख्याल से 3,000 इक्वल टू 30,000 तो होगा. 3,000 में मेरे को जितनी जमीन मिलती थी 25 साल पहले, आज कम से कम 4-5 लाख की तो होगी. तो यू आर वेरी यंग जनरेशन. अगर आपको कुछ करना है, इंडिया इज द बेस्ट प्लेस, यू कैन डू इट. बट आज के बाद सोच लो, अगर करना है तो या मेरे को, इज इट वर्थ पुटिंग अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ माई नेम? यस, पेशेंट को अच्छा लगता है, सोसाइटी का डिमांड है, फेयर. बट आर यू जस्टिफाइंग टू बी अ फिजियोथेरेपिस्ट? दैट इज योर आंसर. फॉर योर इंफॉर्मेशन, 22 साल में कभी मैंने यूके में ट्रैक्शन टेबल नहीं देखा है, कभी आईएफटी मशीन नहीं देखी है. टेंस पेन मैनेजमेंट में देखा, वो भी हम किराए को पेशेंट को दे देते हैं इंडिया के 800 रुपए में. ठीक है, लेके जा भाई, घर पे रख ले, कुछ नहीं होना है इससे. ठीक है. अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे कचरों में पड़ी है, कचरों में, लिटरली जो थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड है कचरों में पड़ी है. और एसडब्ल्यूटी तो जिंदगी में नहीं देखा कभी. यहाँ एक ही इलेक्ट्रोथेरेपी का इक्विपमेंट मैंने यहाँ पे देखा है, वो है शॉक वेव थेरेपी. इंडिया में नहीं है, वो रेयरली होता है क्लिनिक्स में. उसका रीजन पता है क्या है? 10-12 लाख का मशीन. प्रोडक्टिविटी नहीं सर, हम आईएफटी में चला लेंगे. आईएफटी में क्या चलाओगे भाई? तो अपने आप से पूछो कि अगर किसी को ट्रैक्शन टेबल पे डालते हो, इट्स नॉट बैड, लेकिन उसकी फिजियोलॉजी को समझो, उसकी मेंटालिटी को समझो कि कर क्या रहे हो उससे. अगर आधा घंटा हम बॉडी को ऐसे खींचते हैं और डिस्क खुल जाती है, तो बाकी के 12 घंटे तो ऐसी पड़ी है ना. आधा घंटा आपने ट्रैक्शन दिया, कितने किलो का ट्रैक्शन लगा? 40 किलो. सॉरी, so that is the main thing. How you want to dictate, how you want to do it. There is a girl, I was amazed. She is from Ahmedabad. That's what I asked that girl, is she from Gujarat? I was amazed with that girl that she is a physiotherapist just for hand. सिर्फ हाथ की फिजियोथेरेपिस्ट है सर. मेरे से बात हुई तो इतनी अच्छी बात हुई उसकी. शी सेड दैट शी इज सो बिजी कि हैंड का हर कंसल्टेंट उसी के पास पेशेंट ले जाता है, क्योंकि शी हैज बिकम एन एक्सपर्ट इन हैंड.
सो सारे पुलिस सिस्टम पता होंगे, टेंडेंस पता होंगे, एवरीथिंग पता होगा ना. सो कमिंग, दिल्ली का इतना पॉपुलेशन है, तुम अगर कोई एक चीज को पकड़ लो और बोलो कि आ जाओ मेरे पास शोल्डर में, कौन आता है? नो वन विल कम क्लोज टू यू. So this is the scope. This is what we are looking forward for. अब US is trying to catch up. US में शायद I think they have started giving some permissions of not reporting but using ultrasound as a combination for a physiotherapist. फिर ये साइड से ये लोग इतना तेज भागते हैं, फिर इन लोगों को भगाते हैं मशीन्स को. अब कितने में कुछ 8-10 हजार में अल्ट्रासाउंड मशीन है MSK की कॉम्पिटेंट पॉकेट अल्ट्रासाउंड. मतलब आप इतने छोटे बैग में अल्ट्रासाउंड मशीन डाल के लेके चले जाओ. कोई हीरो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इंडिया आके पढ़ाते हैं, बंगाली बैकग्राउंड है उनका, तो अगर उनको अंदर करवाना है ना तो 5 मिनट का काम नहीं लगेगा. उनको ये भी पता नहीं है कि अल्ट्रासाउंड मशीन अगर पकड़ी गई ना विदाउट लाइसेंस के, आप अंदर हैं सीधे. क्योंकि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा इश्यू है इंडिया में. मैं MSK करता हूँ सोनोग्राफी, लेकिन मैं आराम से पहचान सकता हूँ मेल है फीमेल है पेट में. कॉम्पिटेंसी भी मेरे को ख्वाहिश है दुनिया पढ़ाने पर बैठी या पढ़ी. तो अगर कोई सोच रहा है यूके के लिए तो कमिंग 2023 इज द बेस्ट थिंग. सबको कहना, अभिषेक भी है. बेस्ट थिंग का ये मतलब है पहले कंट्री को समझो, अपनी फाइनेंशियल देखो. फाइनेंशियल कोई बड़ी बात नहीं है. आई डोंट बिलोंग टू अ रिच फादर, मींस आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, राइट. मैं कोई ऐसे बड़े बैकग्राउंड से नहीं, लेकिन मेरा यही था कि मेरे को जो चाहिए वो चाहिए. मेरे को ये नहीं चाहिए कि तुम क्या दे रहे हो. तो जैसे मैं यूएस गया ना, तो मेरे को यूएस में चाहिए था, पैसे तो बहुत थे यूएस में वो टाइम पे, लेकिन मेरे को उसके साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी चाहिए. मैं कब तक ये मसाज करता रहूँ, ये नहीं हो सकता था मेरे से. तो नाउ डेज आई डोंट टच एनी पेशेंट. या तो मैं स्कैन करता हूँ, या तो डर्मेटोलॉजी की स्क्रीनिंग करता हूँ, या तो इंजेक्शंस करता हूँ. स्टिल आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट. तो आई थिंक अभिषेक कितने टाइम से पुकार रहा हूँ यार मैं. सॉरी सर, सॉरी. How long it's been now? Sir, asking about the meeting. Time. Sir, it's almost 11 हो गया है, होने वाला है. बहुत लेट हो गया ना Sunday for everyone. But Thank sir, you for listening. I'm really surprised कि जैसे मैं भी क्लास लेता हूँ 9 to 10, जैसे ही 10:30 होने वाला होता है ऑलमोस्ट सारे भागना शुरू कर देते हैं. But it has been almost 11 and सब लोग हैं भी यहाँ पे. And I think So everyone what is we will do, lagging. Abhishek, is Sir, we'll give actually- 15-20 minutes, right? And Definitely. anyone has any question, अगर कैमरा अब तो खोल लो यार. मतलब you don't have to be, देखा हम casually sitting, कुछ नहीं, nothing. तो पता भी तो चलेगा ना कि भाई किसी का चेहरा याद आया तो अरे हाँ, who is it? तो if anyone has a question, वो raise your hand or unmute yourself one by one. You can ask me. I'm more than happy. 15 minutes देते हैं, उसके बाद सो जाओ. So what can we do? कि जैसे इंडिया में तो there is no body ना, जो कि जैसे नाइस गाइडलाइंस अगर बनती है यूके में, तो इंडिया में तो गाइडलाइंस के लिए आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा कोई बॉडी है जो गाइडलाइंस ऐसे कुछ पब्लिश करता है. सर ठीक है, इंडिया में पब्लिश नहीं होगी क्योंकि गाइडलाइंस जो होती है ना वो गवर्नमेंट फंडेड होती है. गवर्नमेंट फंडेड का ये मतलब है कि अगर अभिषेक को 4 महीने लगाने हैं किसी एक चीज के ऊपर, तो अभिषेक को पैसे कौन देगा उसके? गवर्नमेंट. अभिषेक क्रिटिकली एनालाइज कौन करेगा? अभिषेक की फाइंडिंग. बड़े बड़े रिसर्च कौन चलाएगा? पैसे नहीं है. ठीक है, तो गाइडलाइंस नहीं बन सकती. गाइडलाइंस के एंटी कौन होते हैं? होते हैं डॉक्टर्स, और खासकर आपके प्रोफेशन से टकराने वाले होंगे. ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो, कहते हैं बकवास है, मैं तो नहीं करता. मत करो सब, हमें कोई इशू नहीं, आप मत करो. गाइडलाइंस ये कहती है, ठीक है, गाइडलाइंस ये कहती है. जैसे फॉर मोदी जी ने कोई ऑर्डर दे दिया, लेकिन अगर स्टेट को जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर को कंप्लाई करना है, कह सकते हैं ओके ठीक है मैं नेशनल लेवल पे होंगे आप, लेकिन मैं स्टेट लेवल पे नहीं इम्प्लीमेंट कर. उसकी राइट है, वो कर सकता है. लेकिन अगर कोई बन गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर की सुननी ही सुननी है, आप स्टेट चीफ मिनिस्टर के कुछ नहीं कर सकते.
तो वो कभी स्टेट चीफ मिनिस्टर बनाने नहीं देंगे उस लोग, क्योंकि उन पे काम कर जाएगा। हाँ, इसी तरीके से तो गाइडलाइन देखो, सबसे ज्यादा दुश्मनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को होगी तो वो होगी यूके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे मेडिकेशन जाते हैं गाइडलाइंस के ऊपर। ये तो प्रोडक्टिव नहीं, अगर ये प्रोडक्टिव है भी, ये काम करती भी है, लेकिन ये इकोनॉमिकल नहीं है। उसी के टक्कर की और एक गोली है जो इससे 10, अब ये समझो 2 पाउंड में मिल रही है, 100 रुपए में मिल रही है, और दूसरी कंपनी की सेम प्रोडक्टिव है, सेम रिसर्चर्स की सेम प्रोडक्शन है, सेम आउटकम है, और वो मिल रही है 70 रुपए में। तो 100 रुपए की हम जीपी को बोलेंगे नहीं भैया 100 रुपए की नहीं देनी है, 70 रुपए की वाले की देनी। तो यहाँ हेल्दी कंपटीशन भी होता है फार्मास्यूटिकल्स में, राइट? ब्रांड नेम नहीं चलता है यहाँ पे, फार्माकोलॉजिकल नेम्स चलते हैं, और जीपी का काम है फार्माकोलॉजिकल बोलना कि भाई इसको ये दो। फार्मासिस्ट डिसाइड करता है कौन सी फार्मेसी की देनी, कॉस्ट इफेक्टिव उसको पड़ेगी। तो ये सिस्टम है, हमारे पास गोली चलती ही नाम से है ना? तो उसको चेंज कौन करेगा? हम तो नहीं कर पाए 25 साल में, इसलिए शायद हो सकता है मैं भाग के आ गया। आई वाज अ नेशनल फिजियोथेरेपिस्ट व्हेन आई फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन। तो नेशनल गेम जब हैदराबाद में हुआ था, तो जो है ना, क्योंकि यार अपने आप से डिमांड करो, अपने आप से डिमांड करो, क्लिनिकली डिमांड करो, बिल्कुल पैसे की डिमांड करो। अगर कोई बेचारा साइकिल पे आ रहा होगा फिजियोथेरेपिस्ट, नॉट फॉर हेल्थ रीजन, उसको इज्जत नहीं मिलेगी आज की दुनिया। जो मर्सिडीज में आएगा फिजियोथेरेपिस्ट, उसको इज्जत मिलेगी। तो ये है सोशल फैक्टर है यहाँ पे। दिल्ली में क्या अभिषेक रेट चल रहा है आजकल होम विजिट का अप्रोक्सीमेटली? अप्रॉक्स आई थिंक 500 आई गेस, ऐसे कुछ इसके आसपास ही है। राइट नाउ आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, तो इतना मेरे को आइडिया नहीं, बट आई गेस ऑलमोस्ट अराउंड 500 कुछ है। बट स्टिल अगर आप दिल्ली का, अगर आप वेस्ट दिल्ली वाला एरिया जो आ जाएगा, जो इतना नहीं है, तो वहाँ पे आई नो मे बी 100-200 भी है, या इवन आई नो इवन उससे भी कम ले रहे। बट अगर कुछ अच्छे एरिया की अगर हम बात करें, द्वारका टाइप या कुछ, आई थिंक वहाँ पे 500 या मे बी 700 ऐसा कुछ है। तो 22 साल पहले मैं कितने लेने चाहिए थे अभिषेक? सर 5% का इन्फ्लेशन लेके चले अगर तो आई थिंक सर मेरे ख्याल से सर 70। हमारे टाइम पे 50 रुपए 100 रुपए होम विजिट हुआ करता, हाँ 50 to 100 रुपीज 22 साल पहले। okay. मैं 1000 रुपए लेता था घर जाने के। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक पेशेंट देखो 1000 रुपए लेके जाओ, या 10 पेशेंट देख के 1000 रुपए लो, चॉइस तुम्हारी। चॉइस कैसे बनती है कि आप देखेंगे एक पेशेंट घंटे के लिए, लेकिन उसके लिए घर पे बैठ के 2-3 घंटे पढ़िए, तो भी आपका ही फायदा है। पहले तो 1000 रुपए मिल गए, उसके पैसों में घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर 5-6 घंटे तो फोकट में पैसे मिले। लेकिन जिस पेशेंट को मैं पकड़ता था ना, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उसके मेडिकेशन के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उसके घर में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उसकी एक्टिविटी में कैसे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें लगा रहता था। और पढ़ना एक ही बार है, एक बार आपने पकड़ लिया ना, सेकंड टाइम वही इम्प्लाई करना है दूसरे पेशेंट में। तो ये सोचो कि रेट गिराने से अच्छा अगर तुम 500 भी लेते हो, ये बोलो यार, लेकिन ये फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है पता है? मैं 1000 लेके अगर दिन में फिर 505 पेशेंट देखता ना, तो फिर क्वालिटी नहीं बनती, फिर मैं बिजनेसमैन आ जाता और ज्यादा दिन तक चलता नहीं। तो ये है उसके अंदर कि आप क्लिनिकली पढ़ो, उसको समझो और चार्ज करो, और एक डॉक्टर से ज्यादा कमा सकते हो आप फिजियोथेरेपिस्ट। चैलेंज रखो कि डॉक्टर के सामने खड़े होकर बात कर सको अपनी फील्ड में। जैसे तुमने अभी बताया नहीं अभिषेक की 55 लोग हैं, 50 में से 5 तो भागे होंगे, तो 50 में एवरेज लेके चलता हूँ, लेकिन 2 घंटे से तो सुन रहे हैं। मैं गया था मैक्स हॉस्पिटल, साकेत में है मैक्स, साकेत,
तो साकेत में मेरा लेक्चर था No, sir, shoulder actually पे। काफी मैक्स है, not only in Saket. काफी अभी हाँ, और साकेत ब्रांचेस में आई कोई थिंक बड़ा मैक्स था। बस साकेत में भी है सर, साकेत में भी एक मैक्स है। तो मैं लेक्चर देने गया था, शायद वो साकेत का ही एरिया था होगा, मैंने उसमें लेक्चर दिया था शोल्डर पे। तो ऐसी क्लास थी, तो जैसे आप मजबूरी मेरे साथ आज बैठ गए सुनते हुए, तो वहां पे उनके एचओडी थे ऑर्थोपेडिक्स के। सर मुझे तो मज़ा आ रहा है, बाकी के सबका पता नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा तो है। वो बैठ गए आधा घंटा 45 मिनट्स, ठीक है। तो वो बैठ गए आधा घंटा 45 मिनट्स। जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना, ऑर्गेनाइजर्स ने आके मेरे को बोला, सर पहली बार ये एचओडी बैठे हैं यहाँ पे, वरना जब हम इन्हें बुलाते हैं ना, ये 5 मिनट 10 मिनट में उठ के चले जाते हैं, ये बैठते नहीं है हमारे पास। तो चक्कर ये हुई कि वो बैठ तो गए, बैठने के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बुला के बोला कि जब इसका लेक्चर खत्म होगा ना, मेरे को 15 मिनट लेक्चर देना है। तो ऑब्वियसली एचओडी है हॉस्पिटल का, जिसपे आप ऑर्गेनाइजर 200 फिजियोस बैठे हैं वहां पे, तो आप नहीं तो नहीं बोल सकते उनको बुलाया। तो वो बंदा जर्मनी और यूके में काम करके वापस गया है। तो उसने बोला, जो सफदर खड़े के बात कर रहा है ना, डू यू थिंक इट विल कम सो इजीली? ऐसी कंट्री में काम कर रहा है जहाँ पे आपको स्क्रूटनाइज कर करके आपका दम निकाल देते हैं, राइट? तो आपको लग रहा है ये आसानी से इंजेक्शन कर लेगा, सोनोग्राफी कर लेगा, रोमेटोलॉजी कर लेगा। नहीं, तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मेरे को आज बताओ यहाँ पे कि मैं इतने साल से तुम्हारा एचओडी हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा हूँ यहाँ पे, तुमने कितनी बार मेरे को लेटर लिखा है? तुम कितनी बार मेरे पास आए डिस्कस करने के लिए? या मेरा पेशेंट हो ही नहीं सकता कि मेरे 100 के 100 पेशेंट ब्रिलियंट आउटकम हो? कोई ना पेशेंट तो होंगे ही होंगे जिनका आउटकम अच्छा नहीं होगा। कभी आके बोला है मेरे को, सर ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, इसको कैसे मॉडिफाई करें, क्या करें? कभी नहीं बात करें, कभी नोट्स लिखे हैं, कभी डिस्कशन हुआ है नहीं। तो एक ये जो डर है ना, उसको निकालना जरूरी है। क्लिनिकली निकालो, बैठो, अपने सब्जेक्ट को पढ़ो। डॉक्टर बहुत अच्छे लोग होते हैं। कभी अगर इतनों के सामने मैंने बोला है ना, तो पेन क्लिनिक है कुछ, इंटरनेशनल पेन क्लिनिक, बड़ा उसने क्लिनिक खोला है, कहाँ जगह तो याद नहीं है मेरे को। डॉक्टर मार लो आप, मिल जाएगा, अमोद मनोज चा, गूगल करो, उसका पहला आएगा, गूगल टॉप पे आएगा उसका। उसकी क्लिनिक है, उसने कुछ 12-15 रूम्स की क्लिनिक खोली है। और होपफुली मैं दिल्ली इनवाइटेड हूँ उसकी तरफ से, तो मैं अभिषेक को अपडेट करूंगा जनवरी में या दिसंबर में। मैं परमिशन आने के बाद अल्ट्रासाउंड का कोर्स करवाऊंगा, आपको करने के लिए नहीं, समझने के लिए। अगर आप कोई पेशेंट देख रहे हैं, उसको अल्ट्रासाउंड भिजा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आई है, उसके इमेजेस आई है, उसकी वीडियो आई, तो उसको समझना कैसे है, वो मैं इंट्रोडक्शन टू अल्ट्रासाउंड करवाऊंगा 2 दिन का, पेन कंसल्टेंट है उसके साथ। तो आप 50 लोगों में जो भी आज बात को समझ के टारगेट करे कि मेरे को इंडिया में रहना है, तो कैसे रहना है। अच्छा, मैंने अभी फोन उठाया था ना, जो आईपी वो पाकिस्तान का जो था, बोल रहा है खाली मैं पाकिस्तान का नहीं, जो आज फिजियोथेरेपी हेड है ना इंडिया की टीम का, राइट, वो भी मेरा दोस्त है। ही वाज अ स्टूडेंट अंडर जर्मी लुइस, जब हैदराबाद में मैंने कोर्स करवाया था। सॉरी, यार मैं बहुत बात करता हूँ, दी एंड फ्रॉम माई एंड। 5:30 हो गया, 11:30 हो गया इंडिया में। अगर सवाल है तो आप अभिषेक को बोलिए और स्ट्रेट अवे बात करिए, मैं अभी डोर खोल के आ रहा हूँ। ओके, सो आई थिंक मेरे को तो बहुत हेल्प किया, आई थिंक आप लोग सब लोगों को भी मतलब हेल्पफुल होगा, आप लोगों के लिए भी। एंड आई थिंक सर मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम में इसको वाइंड अप कर देंगे। एंड अगर आप लोगों का कोई डाउट या कुछ रहता है तो यू कैन जस्ट फील फ्री टू आस्क राइट नाउ, या मे बी ग्रुप में सर भी है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, इवन उनको पर्सनली भी आप कर सकते हो। बट आई थिंक पर्सनली करने से पहले आई थिंक मैं एक बार पूछ लेता हूँ उनसे कि पर्सनली उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ। लेकिन उसके अलावा आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, या मे बी मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड मैं उनसे पूछ लूँगा अगर वो कंफर्टेबल रहे तो।
But you guys just tell me कि, like, is this helpful? Was this helpful or not? Yes, so very Honestly, आप helpful. बता We दो. got to Yeah, know it is very so good. many new things that we weren't knowing कि ऐसा Okay. हो भी सकता है. Like basically वो ultrasound guided and Yeah. the main method भी said जो ortho MSK में कर सकते हैं. यहाँ देखा जाए इंडिया में तो PG में भी only know 4 या 5 main branches and उसी सोच में जाते हैं. तो he has opened like many eyes for new things. Sir, a lot of us are really impressed with the talk. Thank you. Any questions? Any help? You are in the group, and your I've number told is them there. that Already told you. if they have any doubt or something, they can just put that question in the group, or maybe Yeah. they can put up the question in the group. वो group में question डाल देंगे अगर कोई उनका doubt रहता है, या और maybe if you allow तो वो आपको भी message कर सकते हैं. So there is a question here in the group. What method do you think physiotherapists in India should use to make documentation digital or physical? Which one do you use and how do you document your patient details? Okay. Now, patient data or any data is very important nowadays. The world runs on a data now. Whoever holds the strongest data can change the political level of the biggest democratic country in the world, that is India. डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ चेक किया जाएगा. व्हेन आई मीन पेशेंट रिकॉर्डिंग, इफ यू डूइंग योर क्लिनिक, सो यू मेक श्योर it's taking 15-20 minutes. Okay, thank you. So how I record my things is I don't have any patient name there, no date of birth, no patient identifying markers there. मैंने अभी जैसा बोला था ना, एज 57, दिस तो आपने वैसे ही रखना. सो कोई पेशेंट आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स नहीं है. कोई कोर्स केस आपको इंटरेस्टिंग लगा, बाद में पढ़ना है, आप उसको उधर डाल दो उठा के आपके बॉक्स में. सो आप दो तरीके से काम कर रहे हैं. हॉस्पिटल में तो सारों को डॉक्यूमेंट करना है. अगर उनके पास डिजिटल है तो डिजिटल करिए, उनके पास अगर पेपर है तो पेपर करिए. Sorry. So there are two ways of recording, digital record और ये जो दिख रहा है ना मेरा, ये जॉब का है. थोड़े से नोट्स ले लो. किसी ने स्पीच नोट्स यूज किए? स्पीच नोट्स यूज किए किसी ने? स्पीच नोट्स मारो, गूगल पे आ जाएगा. स्पीच नोट्स या गूगल वॉइस या कोई भी वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आराम से अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट. सर आई बीन यूजिंग दैट वॉइस कीबोर्ड रहता है ना, तो जिसमें मतलब आप बोल रहे हो एंड वॉइस वर्ड डॉक्यूमेंट पे. हाँ, यस सर, वैसे एप्पल यूज करो. तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं है. बट वही जितना है उतना वो कर लेता है बेचारा, जितना, लेकिन इट इज नॉट दैट एफिशिएंट. नहीं, देखो एक्सपेंसिव है. ड्रैगन यूज करते हैं. हमारी कंपनीज ने भी यहाँ बंद कर दिया है फंड करना. ड्रैगन इज मोस्ट पावरफुल सॉफ्टवेयर है स्पीच रिकग्निशन का, लेकिन बहुत महंगा है वो. तो ड्रैगन में तो हम बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे पिक करता है हर मेडिकल डिक्शनरी, उसकी इतनी स्ट्रांग है कि मैं रिलेटेड तो मैं ऐसे लिखता हूँ बैठ के. तो खुद के लिए अगर नोट्स बना रहे हो तो हर पेशेंट के नोट बनाओ. मेरी क्लिनिक है हैदराबाद में. आई रन अ चैरिटेबल क्लिनिक इन हैदराबाद, Ummi Physiotherapy Clinic. Ummi means mother. So in that, every patient comes in there. My physiotherapist makes the notes there. All the notes on the letterhead, send the patient the notes on the same day after treatment.
You told me that your pain is better from last time. You told me that it's not disturbing your sleep. You told me लिखते हैं. We agreed that we will continue with exercise. We agreed a modification in the exercises. We agreed today we will do this. And today I have done this. And you felt better. Subjective, objective, treatment क्या किया, next program क्या है, वो मेरी थेरेपिस्ट पूरा बना के उनको व्हाट्सएप कर देती. सिंपल. इसके पास आपका डाटा भी है, पेशेंट को अपनी रिपोर्ट भी चली गई. अगर वो पेशेंट किसी और को बता, देखो मेरा थेरेपिस्ट रोजाना मैं जितनी ट्रीटमेंट लेता हूँ पूरा लिख के भेजाता है मेरे को. मेरा दर्द अच्छा हुआ तो क्या करेंगे, बुरा हुआ तो क्या करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे मॉडिफाई करेंगे, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया और मेरे को कैसे करना है. दिस इज योर रिकॉर्डिंग. एनीवन एल्स? सर एक डाउट मेरा था. हाँ बोलिए. जैसे शुभम सर, जैसे आपने बहुत सारी चीज बताए, इट ऑलमोस्ट बेनिफिशियल, बट हम इसको इंडिया में कैसे किस अप्रोच के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? देखो किस अप्रोच के साथ आप स्टार्ट करें, बहुत अच्छा सवाल है. आप 5 साल जो पढ़ के आए हैं ना, आप हर पेशेंट देखते हुए ये सोचेंगे कि अगर मैंने एनाटॉमी पढ़ी है तो क्यों पढ़ी है, इससे मेरा क्या फायदा हुआ. मैंने फिजियोलॉजी पढ़ी है तो क्यों पढ़ी है, इससे मेरा क्या फायदा हुआ. अगर मैंने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो इससे क्या फायदा हुआ. तो सपोज कोई एक पेशेंट आया आपका जिसका बैक पेन है, नॉर्मल बैक पेन है, डिस्क का प्रॉब्लम है नॉर्मली. पहली चीज, डिस्क के साथ साथ वहां पे इतने सारे लिगामेंट है, इतने सारे मसल है, फैसिट जॉइंट है. तो आप ये पता करिए कि कौन कौन सी चीज सेंसिटिव है बैक में. तो वो कैसे पता चलेगा, एनाटॉमी से, है ना. अब कोई माइकालाल नहीं कह सकता कि दर्द किससे हो रहा है. हो सकता है डिस्क बल्ज होके पड़ी हो लेकिन दर्द इससे नहीं हो रहा, लिगामेंट से हो रहा हो, केमिकल चेंजेस, इन्फ्लेमेटरी ड्रिवन पेन है जो केमिकली इरिटेट कर रहे होंगे रिसेप्टर्स को. तो आपका पहला काम है कि आपको, मैं जो कह रहा था ना, कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे. डिजीज को समझिए, उसके पैथोलॉजी को समझिए, उसको ट्रीट करिए. अगर किसी को इन्फ्लेमेशन है, राइट, तो आप उसको कह सकते हैं भैया खाने के बाद आइब्रोफिन खा लो पहले. ऐसा नहीं आइब्रोफिन खाएगा तो ये ठीक हो जाएगा तो मेरे कने नहीं आएगा, नहीं, सवाल ही नहीं उठता. आने के लिए आपके पास दुनिया पड़ी है. तो आप ये सोचो एज अ क्लिनिशियन कि मैं फार्माकोलॉजिकली कैसे इसको हेल्प कर सकता. अगर कोई ड्रग्स हैं इसके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ओरल एंटीकोगुलेंट्स लेता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो एंटीकोगुलेंट मेरे कैनालॉग के साथ रिएक्ट करेगा बॉडी में. तो मेरे को 5 घंटे चाहिए गैप ड्रग लेने के और इंजेक्शन करने के बीच में. क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को उस ड्रग की हाफ लाइफ पता है. पड़ी होगी ना हाफ लाइफ ड्रग की, क्या होती है, मतलब जिस्म में से कितनी देर के बाद वो ड्रग बाहर निकल जाती है. तो एंटी कोगुलेंट जो ओरली खाते हैं वो 5 घंटे तक बाहर निकल जाते हैं जिस्म के, फ्लश हो जाते हैं किडनी के तक. जब मैं स्टेरॉइड इंजेक्शन करूंगा तो शुभम हमेशा एक ही चीज सोचो, इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन के काम करना है. क्लिनिकली मैं हर पेशेंट का पूरी स्टोरी लिखूंगा तो मैं डायग्नोसिस पे पहुंचूंगा. असेसमेंट करूंगा तो डायग्नोसिस की क्लैरिटी होगी. फिर मैं ट्रीटमेंट प्लान बनाऊंगा. तुम बता लो कितने क्लिनिक है जो बैक पेशेंट जाते कोई असेसमेंट नहीं होता है, ट्रैक्शन टेबल, IFT, टेंस या मसाज करके भेजा देते हैं. सर मोस्टली इंडिया में तो यही होता है. अच्छा बैक पेन ठीक है, ट्रैक्शन, US टेंस. हाँ तो आप है ना, अपने यंग हैं, अभी 5 साल पढ़ के हैं, कहाँ से पढ़ा आपने? सर आई एम बेसिकली फ्रॉम मथुरा संस्कृति यूनिवर्सिटी. अच्छा, तो आपका जो सब्जेक्ट था फिजियोथेरेपी वो हिंदी में था या इंग्लिश में था? इंग्लिश. अच्छा, मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ, जो बड़े ऑथर्स हैं, फॉर एग्जांपल जर्मी लुइस है, उसकी एक पब्लिकेशन हुई है अभी लेटेस्ट 20th पब्लिकेशन, तो मैं उसकी राइट्स मांग रहा हूँ उससे कि मैं उस बुक को
हिंदी में ट्रांसलेट करके इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करो। क्योंकि यार देखो बॉटम लाइन ये है सर ये आइडिया कि मेरा भी था वैसे। स्कूल के सिवा हम दोस्तों में हिंदी में बात करते हैं, रिश्तेदारों में हिंदी में बात करते हैं। अगर हमने इंग्लिश में बात कर ली तो दोस्त मजाक उड़ा देते हैं, फिर रिश्तेदार कह रहे हैं यार ये तो बड़ा पोज मार रहा है, ठीक है। तो ये है, लेकिन जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के राइट्स होते हैं ना, वो ऐसे नहीं मिल सकते। पहले तो आपसे पूछते हैं हु आर यू, हम कुछ है नहीं तो हम कहाँ से करेंगे। फिर कॉपीराइट में आपको जो सू कर सकते हैं, अगर आपकी तरफ से लीक हो गई, आपने जिनको बेचा उन्होंने कर दिया, तो आपकी कॉपीराइट पे इशू हो जाती है। लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दैट। तो मेन चीज जो है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है। और जो ये सोच रहा है यार मैं ये करूंगा ना पैसे उतरेगा, एक चीज लिख के रख लो आप आज, छोटा जो पैसा है आज कमा लोगे ना, जिंदगी भर उसी में फंस के रह जाओगे। ये जो स्लो स्टार्ट करेगा ना, फाउंडेशन जिसका स्ट्रांग होगा ना, वो मंजिलों पे मंजिल बना ले। उसको ये होगा कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है, मैं मंजिल पे मंजिल बना लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। वो होगा कंसल्टेंट के साथ बात करने वाला, सिस्टम को चैलेंज करने वाला, रिसर्च और सारी चीजों पे बात करने वाला। ये जो क्विक फिक्स होने वाले होते हैं ना, वो 2 फ्लोर के ऊपर जाती उनकी फटनी शुरू हो जाती है। रीजन ये है कि उनको पता है कि उनका फाउंडेशन नहीं संभाल पाएगा, राइट। तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपको कह रहा है कि क्या बोलूं मैं भी, हाँ खुशबू, वो तुम ट्रीट कर रही थी ना हमारे फादर को, जरा उनके ये रोमेटोलॉजिस्ट हैं, जरा उनसे बात कर लो। अगर खुशबू का फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बताएगा। फोन लाइक, hello Mr. Mahesh, this is Khushbu, I'm a physiotherapist. The patient is with me and I think he has more inflammatory pathology than mechanical pain. I have taken a letter written to you. ये होगी वो जिसका फाउंडेशन होगा। तो खाड़ ले मेरा जो खाना है, I know what is my subject, मेरे को पता है। अब खुशबू को लेते हैं दूसरे एंगल। खुशबू है जो ट्रैक्शन लगा देती है, IFT लगाती है, अपने 400-500 लेके पेशेंट चला जाता है। अब खुशबू का था रोमेटोलॉजिस्ट का फोन, खुशबू कहती है अभी हमसे ना कुछ पूछ ले। पहला डर इंडिया में ये होता है, अब ये हमसे ना कुछ पूछ ले। क्या पूछेगा यार, वो क्या गूगल है या वो डिक्शनरी है? ऐसा सवाल आपका भी हो सकता है कि उसके आप मेरे से सवाल कर ले, 25 साल काम करके हो सकता है मैं भी ना जवाब दूँ, लेकिन वहां पे आपका कॉन्फिडेंस नीचे होता है। आप कहते हैं हाँ सर मैं कर दूंगी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं लगाऊंगी सर, SWD दर्द बढ़ गया था ना, नहीं लगाऊंगी। तो खुशबू अल्ट्रासाउंड दे दो उसको, यही बोलेगा आपका रोमेटोलॉजिस्ट। आप सर ये अल्ट्रासाउंड काम नहीं करता, इसमें बकवास है, प्लेसिबो इफेक्ट है। वो आपको नहीं बोलेगा आइंदा कभी। तो ये डिफरेंस है। क्लिनिकली बनो तो बोलो कौन बात करेगा, ओके ठीक है, ओके दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स ओके सर। माय एक्सरसाइजेस कैन नॉट मेक हिज सिम्टम्स वर्स। ज्यादातर प्रॉब्लम इंडिया में क्या होता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे, हमारा दर्द बहुत बढ़ गया। क्योंकि बेचारे फिजियोथेरेपिस्ट को भी पता नहीं है कि ग्रेडेड और प्लान्ड एक्सरसाइज उसकी कैसे करना है, क्या करना है, वो स्कोप नहीं पता है। तो no sir, this exercises cannot increase his pain. Actually, the drugs you have given him, he's not taking that anti-inflammatory or the demands or anything because of the side effects. Hence, possibilities there that inflammation has gone up and it's getting pain. तो वो फिर जो है ना एकदम वो हो जाएगा, यार ये बंदी ना पढ़ी लिखी लग रही है, ये थेरेपिस्ट नहीं है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है। तो दिस इज वेरी यू आर अगेन बार बार वही फाउंडेशन अच्छा रखो। ये मिडल ईस्ट भी चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बोल दूं मैं कि खतर हैज इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ पाउंड्स। वो लोग एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं जो कि हाई एंड का होगा और प्रैक्टिकल होगा। सिर्फ अगर आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, ये सारी निकाल के फेंक दिया आपको। अच्छा भाई, ये ग्रुप में कितने मोबिलाइज करते हैं स्पाइन को? सारे करते होंगे, हाँ।
तो स्पाइन की मोबिलाइजेशन से मैं एक बात बता रहा हूँ आपको. एक कन्फ्रंटेशन हुई थी स्पाइनल सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट के बीच में यही मोबिलाइजेशन को लेके. तो वेस्टर्न कंट्री में फंडिंग थी उसके पास, उसने फिजियोथेरेपिस्ट की धज्जियां उड़ा दी. मतलब आप खड़े नहीं हो सकते उसके साथ, मतलब शर्म के मारे आप नीचे मुंह कर लेंगे. रीजन ये था कि फैसिट जॉइंट मोबिलाइजेशन. ओके, इज इट गुड? तो हम एक काम करते हैं, पहले आप अंगूठा जहां लगा रहे हैं ना, उस जगह को पता करते हैं कि वहां फैसिट जॉइंट वाकई है या आप कहीं फैसिट जॉइंट, मतलब आप क्या, वो होता नहीं है, आप किसी से मिलते हैं तो कहीं हरियाणा के गांव में रह रहा होता है, आप उसको फॉरेन कंट्री में मिलते हैं तो कहते कहाँ रहते हो, कहते हैं दिल्ली में रहता हूँ. तो आप कहते हैं यार मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली में कहाँ रहता है? तो एकदम से ना वो कहते हैं नहीं मैं तो वो हरियाणा के पास वो है ना, मैं वहां रहता हूँ. तो यही चक्कर होगी. आप कहते हैं मैं L4 L5 फैसिट मोबिलाइज कर रहा हूँ. कंसिडर होना, एक मिनट, पहले तुम फैसिट पे हो या फैसिट से कहीं मीलों दूर हो, पहले वो पता करते. तो उन्होंने फंडिंग की ओपन एमआरआईज में. उन्होंने 10 टॉप फिजियोज लिए जो दी फिजियोज थे उस कंट्री के. रिसर्च पेपर है, तुम्हें पढ़ना होगा. तो उन्होंने हाथ लगाया कि बोला ये है L4 L5. बोला वेरी गुड. उनकी एमआरआई करवाई, पैल्पेटरी एमआरआई करवाई ओपन, और पता चला वो 80% फिजियोस L4 L5 के करीब भी नहीं थे. तो 80% आपका हाथी जगह पे नहीं है तो आप फैसिट को मोबिलाइज क्या करोगे? तो फिर डायनेमिक एमआरआई करवाई. ये जो बोलते नहीं ग्रेड 4 ग्रेड 5 दे रहे हैं, मतलब ठीक है आप ग्रेड 4 करो, 1-2 छोड़ दो, कि 1-2 तो हम बात भी नहीं करेंगे. तो उन्होंने ग्रेड 4 मोबिलाइज की. तो ग्रेड 4 में ये पता चला कि आप जो मसल है ना, सिर्फ मसल को दबा रहे हैं उठा रहे हैं, दबा रहे हैं उठा रहे हैं, नीचे फैसिट को कोई धक्का भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी बड़ी मसल पड़ी हुई है. और आपके अंगूठे में दम भी नहीं है ना, तो आप फैसिट को मोबिलाइज कर सकते हैं. जब आपका फैसिट के पास हाथ ही नहीं ना, आप उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, तो फिर ये बकवास चल क्या रही? ये बकवास इसीलिए चल रही है क्योंकि हम सारे थेरेपिस्ट हैं. चैलेंज करो, है आपका नहीं इतना कॉन्फिडेंस? आप बताओ, ट्रैक्शन से पेशेंट अच्छा होता है, कौन कहता है अच्छा नहीं? 3 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये मेरा डाटा है. मैंने 3 साल में 2000 लोगों को ट्रैक्शन लगाया है. उनका वैस स्केल ट्रैक्शन से पहले था 9, अभी हो गया था 3 ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद. हेंस ये बताता है कि ये 2000 लोगों के ऊपर हमने ये की थी और इसका आउटकम निकला था. ये होती है रिसर्च. लेकिन रिसर्च इतनी आसान नहीं होती है ना. आपको फिलोसफी लिखनी पड़ती है, फिर उसका निचोड़ निकालना पड़ता है, उसको पेशेंट सिलेक्शन अलग होता है, ये होता है वो होता है. तो ये वेस्टर्न कंट्री यही करती है. Anything else? यार इतना पुकारा, तुम कुछ तो सवाल कर लो, फिर जाने का भी टाइम हो गया है. सर ये फेसेट वाला जो बात थी एक्चुअली जब आपने से सुनी थी मैंने, उसके बाद में मैंने भी ये क्लास में डिस्कस अच्छा. किया था अपने इसमें. नहीं वो पेपर तो निकालो, वो पेपर निकालो. हाँ सर, मैं शेयर कर देता हूँ सब ग्रुप में. हाँ, वो पेपर मैं, निकालो. जी सर, वो मैं निकाल के शेयर कर दूंगा. और वो तो सबको पता है ना कि 30% डिस्क पल्स वालों को दर्द ही नहीं होता. हाँ सर. एमआरआई का वो भी है. फिर 80% जो 70 साल के ऊपर वाले लोग होते हैं, 80% लोग जिनको कोई शोल्डर में दर्द नहीं है, उनके टेंडन टूटे हुए होते हैं. मतलब टेंडन टूटने से कोई दर्द नहीं, दर्द होना जरूरी नहीं. तो अल्ट्रासाउंड की एक स्टडी है, वो कहती है कि उन लोगों ने 70 साल के ऊपर के लोगों को लिया था जिसको शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई दर्द नहीं, कोई रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं. उन सबका स्कैन किया तो 80% लोगों के टेंडन टूटे हुए मिले. जरूरी नहीं है टेंडन टूटा हो तो आपको दर्द हो रहा. ये कौन चिढ़ता है पता है? ऐसे अगर आप बनेंगे ना तो आपका डॉक्टर आपके सामने मुंह नहीं खोलेगा, वो खोल भी नहीं सकता. बने रिसर्च तो ये नहीं कहती आपके पास कोई पेपर है सर जो मैं पढ़ के अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करूं, वो आपसे नहीं बात करेगा नेक्स्ट टाइम. वो आपसे दूर ही रहना पसंद करेगा. और आपके पेशेंट बनेंगे जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. तुम लोग इंडिया में रहते हो, यकीन मानो मेरे को तो चिढ़ आती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ. बेसिकली मेरे को मजा आया क्लिनिकली, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ कि यार अगर मेरे टाइम पे, जब मैं नेशनल फिजियोथेरेपिस्ट था नेशनल गेम्स का, अगर जब आईपीएल होता ना, मैं कभी इंडिया नहीं छोड़ता,
कभी नहीं छोड़ता। जितना पैसा, जितनी शोहरत और जितना यार बेसिकली अगर वो नो बॉल गांगू मतलब कोहली की जगह पे पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता और हमारे कोई बॉलर का वो नो बॉल पढ़ के मैच जीत जाता ना पाकिस्तान, हम उनको बर्बाद कर दिए होते सोशल मीडिया पे आज तक। आईसीसी को बर्बाद कर दिए होते, कमेंट्रेटर्स को बर्बाद कर दिए थे, सबको बर्बाद कर दिया होता अगर वो बॉलर हमारा होता, बैट्समैन पाकिस्तान का। ये पावर होना चाहिए। तो इंडिया का पावर है। आई इंडिया आईपीएल में जितना जनरेट करती है ना, पूरी दुनिया के टूर्नामेंट्स मिला के उतना जनरेट नहीं करती। तो फिर जिसकी लाठी उसका भैंस, ऐसे ही हिसाब। तो अभी तुम लोग हो, इतनी ज्यादा स्कोप है, तुम एक महल्ला संभाल लो खाली दिल्ली में, एक महल्ला कह रहा हूं मैं, you can easily earn 50,000 to 1 लाख रुपीस, और 1,50,000 में तुम इंडिया में जितने खुश हो ना, 10 लाख लगा के भी खुश नहीं रहो, क्योंकि मैं अपने बच्चों का चेहरा ही नहीं देख पाता हूँ। हाँ, ये बात है कि मैं एक महीने की लंबी छुट्टी लेता हूँ साल में, वो भी लैविश, छोटी मोटी नहीं, एकदम लैविश, या दुबई, एनीवेयर 5 स्टार, तो बच्चों का कॉम्प्रोमाइज वहां पूरा हो जाता है। चलो भाई, उठ गए नींद में से, यहाँ कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अभिषेक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, एंड थॉट कि आप इतना टाइम दोगे हमको, एंड अपने इतना टाइम लगाया, एंड लिटरली ऑलवेज गुड। बहुत सारी चीज़ें इवन मुझे भी लाइक सीखने को मिली, एंड बहुत सारी चीज़ें लाइक हेल्पफुल थी, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक इतने टाइम के बाद में अगर इतने सारे लोग अगर यहाँ पे ज्वाइंड है इस मीटिंग में, तो आई थिंक सबको फ़ायदा मिल रहा है, तभी सब लोग बैठे हुए हैं। एंड स्पेसिफिकली अभी आई थिंक 11 से 11:30 हो गए सर। बहुत लेट हो गया, कल मंडे, आई एम वेरी सॉरी टू होल्ड यू लाइक दैट। अभी तो यहाँ पे यूके में तो 6 बज रहा है सिर्फ। आप लोग जाइए, सोइए। मेरी जो ऑपरेशंस मैनेजर है हैदराबाद में, रोशना, तो मैंने रोशना को ज्वाइन करवाया था ना, तो मैं इन लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज या एक ईमेल कर दूंगा। अभिषेक तो है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद हिम। मैं सोशल मीडिया पे जीरो हूँ, ना तो मेरा ट्विटर क्या कहते हैं उसको, ट्विटर का एंकर है, ना तो मेरे पास फेसबुक का अकाउंट है, ना तो लिंक्डइन है, क्योंकि मेरी जिंदगी में टाइम नहीं है सोशल मीडिया पे। मैं आपको ढूंढ रहा था इंस्टाग्राम पे कि आपको मैं साथ में मेंशन कर पाऊँ, पर आप मिले ही नहीं मेरे को। नहीं यार, टाइम नहीं है ना। देखो, मैं 10 आवर्स की शिफ्ट करता हूँ मंडे टू संडे, फिर अभी जाके मैं सीवीज बनाऊंगा, फिर मैं अपनी खुद की सर्विस है, मेरी क्लिनिक्स हैं, मेरे को और क्लिनिक्स बनाने हैं, तो बहुत काम है। सोशल मीडिया, मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ तो डर जाता हूँ जॉब पे कि भाई आज 15-20 मिनट बेकार के वो वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसका कोई दुनी नहीं बनती है। यस सर। वो मजा आया था, मैं दिल्ली आया था ना अभिषेक, तो एक ड्राइवर हमने लिया था, बेचारा कहीं यूपी का था, तो मुझसे ऐसे ही जनरल बात करते जा रहे थे, मैं और मेरा भाई। कह रहा सर कहाँ से हैं? मतलब ब्रिटेन से। अरे आपको पता नहीं है, यूपी में एक है जो कि क्वीन से ज्यादा अमीर है, आपको हम वीडियो बताते हैं। वीडियो बताई हमें, हमारे तो होश लगे भाई वीडियो देख सर। कौन? हमने बोला यार, तो मतलब उनको ब्रीड किया गया है ना। देखो, अगर दिल्ली के फ्लाईओवर्स हैं, तो दिल्ली के फ्लाईओवर्स का प्रोजेक्ट पास हुए 10 साल हो गए होंगे पुराने। दिल्ली का एयरपोर्ट अभी थोड़ी बना है, कब का प्रोजेक्ट पुराना होगा, राइट? ये जितने देख रहे हैं ना सर आप, ये सारे फ्लाईओवर, ये एयरपोर्ट, ये सारी बिल्डिंगें बीजेपी ने बनाई है। तो मैं बोला यार, वाकई यकीन मानो, किसी को डाटा पे काम करना हो, बाज़ वक़्त अगर कंप्यूटर इतना एडवांस हो जाता अगर मेरे टाइम पे, तो मैं तो डाटा एनालिस्ट बनता। किसको कहाँ घुमाना है, किसको क्या करना है, सब डाटा पे। बिल्कुल सर। सर वही वाली बात है, क्लिनिकली भी हुई। आई थिंक जो क्रक्स है वो है कि सर मतलब वही, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड एविडेंस की बात अगर ज़्यादा करना शुरू करें ना हम इंडिया में, तो आई थिंक काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरे ख्याल से। बस ये सर कि जैसे मैंने कुछ बोल दिया, दूसरे ने मान लिया, मतलब ये चीज़ है। काफ़ी लोग जैसे जो मेरे नोन में है या फिर जो मेरे से जूनियर्स रहते हैं, अगर वो कोई सेमिनार अगर अटेंड कर रहे होते हैं, मे बी किसी पे भी, चाहे वो टेपिंग हो चाहे कुछ भी हो, आई जस्ट आस्क देम कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना, कि उनसे ये पूछना कि इसका एविडेंस क्या है, या फिर अगर कोई ना कोई एविडेंस या कोई ना कोई मे बी कुछ तो वो शो करे कि अगर हम आगे जाके पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो इसका आउटकम कितना आने वाला है, कितना हम भरोसा करें इस पर या कितना भरोसा ना करें। तो एंड जब वो पूछते हैं उनसे, एंड वो उनकी हवा निकल जाती है उसके बाद में।
नहीं चाहते हैं ना। मेरा एम्स में मेरा भी कोर्स था, शोल्डर मैंने पढ़ाया था, उसके साथ मैंने टेपिंग पढ़ाई थी। मैं खुला बोला कि ये बकवास है। मैं तो किनेसियो टेपिंग का इंस्ट्रक्टर भी था, तो मैंने बोला ये बकवास है, इससे तुम्हें हाला बनाना है, पेशेंट को हाला बनाने वाली मशीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वही सर कि मतलब एल्जीवर का एक पेपर है किनेसियो टेपिंग पे, अगर Okay. कोई टेपिंग करता हो तो एल्जीवर का पेपर पढ़ो। Yes, sir. एल्जीवर का पेपर पब्लिकेशन कहता है, उसका रिसर्च कहती है प्लेसिबो से ज्यादा इसमें कोई काम नहीं। कुछ नहीं, वही वो सर है कि अपने ऊपर मत लेना कभी भी, कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं लेना कि ये पेपर ऐसा कहता है कि ये है। आपके पास कोई पेपर है जो कहता है कि ये है, तो आप बता दो। एग्जैक्टली सर, मतलब वही एविडेंस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एंड पर वही चीज़ है कि सर अगर हम एविडेंस भी यहाँ पे बोलते हैं ना, तो सामने वाला पहले ही उस बात पे चिढ़ जाएगा कि इसने मेरे से क्वेश्चन ही कैसे कर लिया, या इसने मेरे जो मैं सिखाने आया हूँ उस चीज़ पे क्वेश्चन ही कैसे कर लिया। तो वो प्रॉब्लम मेन है आई थिंक। तो बट आई थिंक सर धीरे धीरे आई थिंक वही इट्स बेटर कि जैसे जो नई जनरेशन है हम लोग इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई गेस अब शायद कुछ चेंज आ सकता है, क्योंकि हम मैक्सिमम लोग अगर हम एविडेंस, तभी मैं सर लाइक एविडेंस वर्ड मैंने बोलना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया आजकल। मैं हर जगह पे एविडेंस टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, एंड ताकि तभी सब लोग इसकी बात करें, एंड तभी हम फिगर आउट कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक काम करेगी नहीं करेगी, कितनी अच्छी है कितनी बेकार है। जरूरी नहीं है आप अपनी खुद टेक्निक बनाओ। आप खुद कह सकते हो कि भाई मेरी टेक्निक काम करती है मेरे पेशेंट, आपको कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन फिर आपको डाटा होल्ड करना है ना। आपने बोलना है मैंने 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे 200 पेशेंट का डाटा है और ये ऑथेंटिसिटी। भूल जाओ, किसी रिसर्च पेपर के लिए नहीं कर रहा, खुद के लिए कर रहा। बता दो कि ये है कि मेरे पेशेंट तो अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं मेरे को पता नहीं, आप पता कर लो, आपको इंटरेस्ट है तो। मैं तो यूज करता हूँ, मेरे पेशेंट अच्छे होते हैं, बस सिंपल। कोई भी चीज को चैलेंज करो, किसी को। अच्छी मार्केट है इंडिया की, वेरी गुड। आएंगे, दिल्ली आऊंगा तो मैं अभिषेक आई लेट यू नो। सर डेफिनेटली मुझे बताइएगा। मैं फीस भी जो है ना, मैं उतनी नहीं है, मतलब बहुत कम फीस रखने की कोशिश करता हूँ मैं इंडिया, ताकि आए। लेकिन लोग करते क्या पता है कोर्स पे आके? खाना सर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट यार मेरे भाई ये कुछ नहीं काम आने वाला है सर्टिफिकेट। अच्छा इतने जने हैं ना, थोड़े जने रह गए हैं बाकी। एक बताओ मेरे पास कितनी एमएससीज हैं, कितने एमपीटीज हैं मेरे पास? तुम नहीं बताना अभिषेक, कितने एमपीटीज हैं मेरे पास? और मैं क्लिनिकल पीक पे हूँ यूके में, मतलब मेरे से ज्यादा फिजियोथेरेपी स्कोप में और कोई प्रैक्टिस करता। तो मेरे पास कितने एमपीटीज होंगे बताओ? कोई भी बोल दो यार, सोते सोते नींद में से ही बोल दो, अब जा रहा हूँ मैं भी पैक कर रहा हूँ। एमपीटी की बात कर रहा हूँ भाई, एमपीटी 2 साल लगता है एक पढ़ने के लिए। ओके, और कोई बताओ? 5 सर आपने जैसे अभी तक लेक्चर लिया है, कहीं भी एमपीटी का जिक्र नहीं किया आपने अभी तक, बस ग्रेजुएशन कहा है। मेरे पास एक भी एमपीटी नहीं है, एक भी सर पकड़ लिया। हाँ, मेरे पास हैं नियरली 360 मास्टर्स लेवल क्रेडिट्स, जिसमें 2 एमपीटी निकल सकते हैं उसमें से। 180 की एक होती है। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा बंदा रहा हूँ कि मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। अल्ट्रासाउंड 60 क्रेडिट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड 60 क्रेडिट्स, अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक 60 क्रेडिट्स, 2 रिसर्च मॉड्यूल्स 2020 के 40 क्रेडिट्स, इंजेक्शन थेरेपी मॉड्यूल 20 क्रेडिट्स, डिस्टेंस लर्निंग मॉड्यूल 20 क्रेडिट्स। मेरे को इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट है। पेपर वो दे ना दे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और कोई मेरे को ऐसी जॉब नहीं थी जहां तक मैं नहीं पहुंच सका एमपीटी। हाँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता या कहीं जाता तो वो कहते कि भाई आपके पास एमपीटी या पीएचडी है, तो जब मैं समझ सकूं एज अ क्लिनिशियन आई डोंट नीड इट। तो आपको भी जरूरत नहीं। जितना 4 साल में पढ़े हो ना शुभम, वो अगर 40 साल में भी इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमने इतना पढ़ लिया है। वही हो गया ये आईफोन की तरह, हर 6 महीने को उनका अपग्रेड आता है। जो आईफोन हमारे पास होता है, हमें खुद उसका फंक्शन पता नहीं होता है, लेकिन हम जाके फिर एक अपग्रेड का खरीद लेते हैं।
तो बीपीटी में से अगर निचोड़ निकाल लोगे ना तो एमपीटी वाला भी शरीर नहीं आए। भाई साहब क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, बेसिक क्लियर होना चाहिए। एक लड़की थी गुजरात की, हमारे पास गुजराती ज्यादा थे ना इसलिए मैं बार बार गुजरात कहता हूँ, उसको मेरा लेक्चरर कहता था शी इज अ बुक ऑफ एनाटॉमी। वो इतनी स्ट्रांग थी एनाटॉमी में कि वो कहता था मेरा लेक्चरर कि अगर उसको नींद में से उठा के तुम हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई पूछो वो बोल देगी। आज मेरे को लग रहा है कि अगर मेरी एनाटॉमी और स्ट्रांग होती ना, जिसकी एनाटॉमी स्ट्रांग है, समझो बहुत स्ट्रांग है, वो अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ ऐसे खेल सकता है, ऐसे उंगलियों पे। अल्ट्रासाउंड मशीन काम क्या है, एक वेव जाती है, टकराती है और आपको इमेज देती है, आपको इमेज स्क्रीन पे नजर आती है। अगर आपको पता है कि वहां पे क्या चीज होगी तो वही तो इमेज आपको आसानी से दिखेगी। जैसे हमें पहले दिखते थे सारे क्लाउडी नजर आते थे, तुम लोगों को भी अगर पता आया दिल्ली तो बताऊंगा, सारे बादल ही नजर आते थे और हम यही कहते थे हाँ सर नजर आ रहा है, नजर कुछ नहीं आ रहा। हम यहाँ से मीडियन नर्व को पकड़ के लेके जाते हैं, पूरा कार्पल टनल से पास कराते हैं, वो देखो दिख रहा है, वो मसल है, वो टीरिस माइनर दिख रही है, हाँ वो दिख रही है, वो पेक्टोरालिस आ रही है, वो तुम्हें बोला नहीं था बीच में फेशिया है, वहां से देखो ये निकल के यहाँ ब्रांच दे रही है। घंटा पता होगा, एनाटॉमी में है ही नहीं हम लोग कुछ भी, तो मुंडी ला रहे हैं, हाँ सर हाँ सर। अब वो जब नीचे आते हैं ना वो मसल्स के नाम लेते आते हैं, देखो ये लैटरल में जा गई है ना, यहाँ से टर्न मारेगी, ये देख रही है छोटी ब्रांच ये दे रही है प्रोनेटस टीरिस को, ठीक है, अभी ये सुपरफिशियल हो जाएगी, देखो ये मसल के ऊपर आ रही है। ये कब सीखेंगे आप? फर्स्ट ईयर में। किसी की एनाटॉमी स्ट्रांग होगी ना, वो एमएस के सोनोग्राफी ऐसे करेगा, रेडियोलॉजिस्ट भी उसके सामने मुंह खोलेगा, मुंह भी नहीं खोल सकता। समझ गए? तो एक सब्जेक्ट को पकड़ लो और उसमें बोलो सबको रखो, पूरा करो, ऑर्थोपेडिक करो, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी करो, लेकिन एक पकड़ लो, एमएस के पकड़ लो, लोअर बैक पकड़ लो, हिप पकड़ लो, नी पकड़ लो, एंकल पकड़ लो, शोल्डर पकड़ लो, नेक पकड़ लो, कोई एक को पकड़ लो। चेक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, जो तो वैसा नहीं, चेक ऑल ऑफ एंड मास्टर ऑफ वन कर लो। बोलना कि पूरी बॉडी में ट्रीट करती है लेकिन शोल्डर के मामले में मेरे से कोई टक्कर नहीं ले सकता, ये मेरा इंटरेस्टेड एरिया है। एक हाथ पकड़ लो, एल्बो पकड़ लो, बैक पकड़ लो, उसके अंदर इतना डीप जाओ कि आपका कंसल्टेंट बोला सर व्हाई आर ट्राइंग facet injection, more research says that a median nerve block can be more productive in this kind of a patient, can you reflect on any papers? बोलते ही वो पेन कंसल्टेंट भी बोलेगा कहाँ काम करती हो, मेरी क्लिनिक पे आ जाओ, बोलेगा हॉस्पिटल में उंगली ना करो, तुम अच्छी हो, मेरी क्लिनिक पे आओ, अपना फायदा करना है। तो कैच होल्ड ऑफ वन बॉडी पार्ट। यूके का किसी को प्लान है आने का या कोई चाहता है, स्कोप और पैसा नहीं चाहिए यूके आने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मेरे डैड के अकाउंट में 25,000 रुपए बता के आया हूँ यूके, ऑनेस्टली ओपन। आपको पैसे नहीं चाहिए यूके आने के लिए, नहीं चाहिएगा ये मतलब नहीं है कि पैसे जीरो चाहिए, आप 2-3 साल में सब वसूल करो। एक ही चीज है आपको चाहिए, भरोसा, मेहनत और प्लानिंग। प्लानिंग जितना प्लान करोगे उतना आसान है। प्लानिंग है, अगर तुम मिडिल क्लास के भी हो ना, प्लान करो तुम कोई भी कंट्री चले जाओ, प्लान नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ excuse me, sir. Actually, I am planning for Australia. So, how is Australia for master? ऑस्ट्रेलिया अगर मेरे को जाना होता ना क्लाइमेट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, मैं एनी टाइम ऑस्ट्रेलिया चला जाता। दैट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री टू लिव इन, ब्यूटीफुल क्लाइमेट, ब्यूटीफुल कंट्री, रेस्पेक्टेड प्रोफेशन, गुड। प्रॉब्लम इज ना तो वहाँ स्कैन करने देंगे ऑस्ट्रेलिया में, रिपोर्ट लिखने नहीं देंगे, इंजेक्शन करने नहीं देंगे, रोमेटोलॉजी नहीं करने देंगे, प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, and one of the expensive countries to live in. Taxation is very high in Australia. UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये तीनों भाई बहन ऐसे हैं इनका टैक्स है 45%।
मतलब दिन के 100 रुपए कमाओ ज्यादा तो 45 सरकार लेके चली जाती है, 55 हमें मिलते हैं। लेकिन लाइसेंसिंग प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट इन ऑस्ट्रेलिया। उनका जो एग्जाम है ना वो डिफिकल्ट है बहुत, तो वो कैलकुलेट करके जाओ ऑस्ट्रेलिया जाना है। लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर मेरे को यहाँ से भागना पड़े तो मैं कभी भी भाग जाऊँ, क्योंकि आई हेट दिस वेदर ऑफ विंटर इन यूके। ऑस्ट्रेलिया इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफul country, बहुत अच्छे। That's why actually I'm working with Dr. Parivesh Kumar sir. He's in Australia from वो past सेमिनार 15 करवाया था ना थोड़े दिन पहले परिवेश। हाँ So he just suggested me that Australia is very good and it has very scope in देखो physio. एक बात बोलो तुम मेरे को, चिकन की दुकान पे जाके पूछो कि मटन कैसा है? No. नहीं, तो मेरी दुकान से कुछ खरीदने आओगी, राइट? तो हलवाई अगर डायबिटिक की गोली बेचे तो फिर या तो उसको डायबिटिक की गोली बेचनी पड़ेगी या तो हलवा बेचना पड़ेगा, है ना? Right. मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? देखो 26 साल की उम्र में, मतलब कोई भी 25-26 साल की उम्र में mature to give a birth to a child, has finished graduation, matured enough to make their own decision. सरकार कहती है 18 साल के बाद आप मेच्योर हैं कि एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर तो हम सब 25-20 के ऊपर है ना। तो तुम बैठो और अपने आप से पूछो, मेरे को अगर कहीं जाना है तो क्यों जाना है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, नॉट व्हाट ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका इज गिविंग। जैसे मैं अमेरिका गया था ना 2007 में, मैंने अच्छे खासे 3-4 लाख खर्चा करके पूरा क्लियर कर लिया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लगा अमेरिका इज बेस्ट प्लेस टू गो इन, ऑस्ट्रेलिया से अच्छी जगह है आपको अमेरिका जाना मिले, क्योंकि वैरायटी है उनके पास, इतनी बड़ी कंट्री है। आप बोले मेरे को राजस्थान जैसी जगह रहना पसंद है, तो कह रही है आ जाओ हमारे पास डेजर्ट है, लेकिन इनको बहुत बर्फ पसंद है, कह रहे हैं कि आ जाओ नॉर्थ में, हमारे पास बहुत बर्फ पड़ा है, हमें बीच चाहिए, कहते हैं जाओ फ्लोरिडा चले जाओ, हमें टैक्स नहीं चाहिए, डैलस चले जाओ, मेरे को हाई फाई लाइफ चाहिए, वेगास चले जाओ। उनकी कंट्री में इतनी वैरायटी है ना कि आप कहीं भी जा सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, मेरे को क्लिनिकल ग्रो नहीं हो रही थी, नहीं हो सकता था, और मेरे को कमाना था, और वहां थी तनख्वाह, मैं यहाँ तनख्वाह पे काम नहीं करता, मैं अपनी खुद की कंपनी चलाता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट फिल करता हूँ। तो आप सोचो कि मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई वांट। मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, मिडिल ईस्ट के एडवांटेजेस हैं, टैक्स फ्री इनकम, टैक्स ही नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे इंडिया वापस आ जाना है। ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मेरे को रह जाना है वहां पे, ठीक है, कहाँ रहना है, क्या खर्चा कितना है, महंगाई कितनी है, फिजियो की तनख्वाह कितनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वहां पे, लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब देख के जाना है। हम जब चाह के अडेप्ट होने जाते हैं मुश्किल हो जाती है। यूरोप है, बहुत ब्यूटीफुल है, हर चीज है यूरोप के पास भी, जैसे अमेरिका के पास है, अगर आप पूरे यूरोप पे एक जगह ले लें, लेकिन फिर प्रॉब्लम है लैंग्वेज। आपको लगेंगे 2-3 साल लैंग्वेज सीखने में, फिर आपके बच्चे अगर होंगे तो वो बच्चे वहां की लैंग्वेज सीखेंगे, तो यहाँ से तो बिल्कुल पैदल होगा, ना तो उनको इंग्लिश आती है ना तो हिंदी आती है, सिर्फ जर्मनी में तो जर्मन आती है। डच में मेरी दोस्त है, उसके 3-4 क्लिनिक है, वो दिल्ली की है, क्या नाम सर, वो भी मनोज चाय, मेरे दोस्त मनोज चाय निकलता है। तो मनोज हॉलैंड में है, उसकी एक बेटी है, ना तो हिंदी बोलती है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश से पैदल है, पूरी बोलती है वो डच लैंग्वेज बोलती है। तो आपको सोचना है खुशबू, मेरे को क्या चाहिए, वेयर आई वांट टू गो, बैठो आराम से देखो। Yes. और अगर आप पूछ रहे हैं ना प्रॉब्लम जो है, मेरे को क्या चाहिए का सवाल है। हैव यू बीन, एनीवन बीन टू दुबई? No. दुबई गया है कोई? No, sir. जाओगे ना दुबई, वेस्टर्न कंट्रीज को भूल जाओ, वो ऐसी पीक पे निकल चुके हैं ना कि आप इमेजिन करो वो चीज उनके पास है। और मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, ठीक है, मेरे को दुबई से अच्छी जगह नहीं दिखती। मेरे को दुबई में कौन सा फूड चाहिए, श्रीलंकन चाहिए, इंडियन चाहिए, मिडिल ईस्ट चाहिए, दिल्ली का चाहिए, साउथ इंडियन का चाहिए, मिडिल ईस्ट चाहिए, अमेरिका, हर चीज है। तो आप सोचो कि मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई वांट। इंडिया बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, पेरेंट्स के साथ, यू लव,
staying there. लेकिन सबको ये कह रहा हूँ, अपने आप से पूछो तुम्हें क्या चाहिए. सामने वाला जो देगा, अगर वो लेने की आदत डाल लोगे ना, तो हमेशा लेने वाले बनोगे. तनख्वाह दे रहा है सामने वाला 20,000, तो 20,000 में ही काम करो. खुद की क्लिनिक खोलोगे, मेहनत करोगे, तो तुम्हारे ऊपर है 50 कमाओ या 1 लाख कमाओ. तो Hello, अगर sir. जिस हाँ 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 Sir, I was also trying. Means I'm thinking about to work in UK. I have a 3 years experience. So what will be the process further? प्रोसेस ये What I है do? कि उस ग्रुप में अभिषेक के पास है रोशना का नंबर, आप उसे लीजिए, कॉल करिए, वो सब आपको बताएगा. पहले मैंने अभी जो खुशबू को बोला ना, अभी वही सोचिए मेरे को क्या करना है. No, because sir, I have my own clinic in Mumbai, in Maharashtra. Okay. So I have been working for 2 years. मुंबई में कहाँ पे है? कल्याण के पास में है. कल्याण के पास में है, ठीक Yes, है. sir. तो सर वहाँ पे कैसा होता है ना, मतलब अगर पेशेंट आता है. कोर्स करने के लोगों को किसको किसको जानती हो? सॉरी, ये जो कोर्सेस कराते हैं ना कल्याण के पास, मुंबई के पास, उनमें किस किस को जानती हो? वो एक है, ये क्या बोलते हैं, उमेर है, उमेर खान है. वो टेपिंग और उमेर वो को सब नहीं कराते कहते. हैं. नहीं, ये और कौन है? मुझे तो उनका ही पता है. अभी मैं मोस्टली, मतलब अभी मैं पूना में थी, मैं अभी मुंबई शिफ्ट हुई 2 years बैक. अच्छा, गौरव को नहीं. अच्छा, गौरव है, मुंबई का रहने वाला है, और वहाँ पे सबसे ज्यादा जो कोर्स करवाते हैं ना, वो सारे मेरे दोस्त ही हैं सब. लेकिन मुझे डर अच्छा. होता है. नहीं, मुंबई पीपल हैव डन वेरी क्वाइट गुड. मेरे 3 स्टूडेंट हैं अभी, तीनों ने एफसीपी जॉब ली हुई है यहाँ पे. दे आर फ्रॉम मुंबई लोकल्स. या एचसीपी से निकाल के एफसीपी जॉब, मतलब अगर इंडिया से कोई आके एफसीपी उठा रहा है तो दे आर रियली गुड, क्योंकि उनकी सैलरी आराम से 35-40 के करीब से स्टार्ट. सो यू आर ऑलरेडी अ बैंड 7 टू स्टार्ट विद. ओके. तो सर मुझे वहाँ पे थोड़ा ट्राई करना था, तो इफ इट्स ओके. बिल्कुल करो. देखो, तुम सोच लो क्या करना है, रोशना से बात करो, मेरा नंबर भी है, और मेरे से ज्यादा तो अब अभिषेक जान गया होगा कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या होती है, क्या है, किधर है. हाँ सर, मैं फॉरवर्ड सब कर कुछ. दूंगा, कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा. यस यस, थैंक यू. ओ, ठीक है, करो. जितने भी हैं, अब वो सो जाओ यार, 12 बज रहा है, मेरे को भी. यस सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Okay, thank you then. Okay, thank you. थैंक यू सो मच सर. Thank you, थैंक यू सो Abhishek. मच. Okay, thank you, man. You take care.